Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. First of all, let me introduce you myself. It's me, Uruj Azhar, and I am the president of UMT Women and Children Health Club and also the CEO of Healthcare Professionals Alliance. Today, I welcome you, and as you all know that today UMT Women and Children Health Club and HPA is bringing you this initiative in collaboration with AEK Academy to help develop your skills during this time of lockdown. AEK Academy is a platform which offers online training program in different fields of life for the purpose of skills development in Pakistan. The purpose the person of the hour is Mohammad Khurram Irshad, and he is a digital marketing strategist and corporate trainer with 5 years of experience. He is working as a lecturer in Ektama College, Lahore, and AEK Academy in the field of training and development, and also running his own NGO that is Pakistan Youth Training Society, which works in developing life skills which works in developing life skills in young people. He also works in corporate sectors throughout his company, Modern Knowledge Marketing, and has been associated with different platforms such as Management House, CEO of Club Pakistan, Global Youth Peace Movement, Hawks Youth Vision, and Pakistan Youth Council. This detail is given so you understand the importance of the person and his time. So pay attention to the session and do listen carefully because you might be asked questions during the session itself. And further, if you have any queries or if you have questions, do raise your hands and drop your question in the chat box. So let's welcome our today's guest speaker who is Mohammad Khurram Rashad. So Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Salam. Thank you so much, first of all, and thank you so much to all the audience who joined me till now. And I hope कि आज के इस सेशन से आप बहुत कुछ सीखेंगे माशाल्लाह. मिस उरूज ने सारी डिटेल्स के साथ मेरा इंट्रोडक्शन. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय टीम मेंबर्स who arranged this session, and special thank to UMT Child and Women Club or Healthcare Professional Alliance. So as you know, today our topic is digital marketing. But before we go in depth of digital marketing, I would like to discuss the concept of goal setting. कि आप सब लोगों को इस चीज का पता हो व्हाट इज गोल सेटिंग, अपने गोल्स कैसे सेट करना है और अपनी डायरेक्शन को कैसे सेट करना है. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, so we are going to start it from the topic of goal setting. What is goal setting and how to set your goals? So I might ask few simple questions to all of you just to know about yourself. Either anyone of you know about it or not. And my simple question is, my screen is shareable. It's visible to you all. Yes, sir. आपकी स्क्रीन नजर आ रही है हमें. अच्छा, एक सादा सा सवाल है मेरा. व्हाट इज ड्रीम? हम सबके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, ड्रीम होते हैं. एनीवन जो इसका प्रॉपर आंसर दे सके, व्हाट इज ड्रीम? आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? Yes, sir. ओके. एनीवन जिसको ये पता हो व्हाट इज ड्रीम? ख्वाब क्या होता है? तो आप अपना माइक ऑन करके इसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. सर ख्वाब वो होते हैं जो ना दें. Actually, in my opinion, dream is a pattern of aspirations, ideas, or thought processes during sleep. But dream will be actually fulfilled when we come to know that in real life it also exists, but we are trying to dream of anything. सर जी. सर ख्वाब ये होता है कि जो आप देखते हैं और उसके बाद आप ट्राई करते हैं कि उसको कंप्लीट करने की, किसी तरह अचीव करने की, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. ओके. जब आप किसी चीज की डिजायर करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रीम. ओके. यस सर. देन व्हाट इज विश? इफ दिस इज ड्रीम, देन व्हाट इज विश? सर विश ये होती है ना कि मतलब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं. फॉर एग्जांपल अब मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे पास iPhone 12 Pro Max हो या कोई चीज़ हो, यानी कि ये मेरी ख्वाहिश है.
अब आपने ये ड्रीम और विश के बारे में थोड़ा सा सबने सुना होगा। ड्रीम आपके ख्वाब होते हैं, बहुत सारे ख्वाब जो आप देखते हैं, बहुत सारी विशेस जो आपके पास होती हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं, देन उसके लिए आपके पास विशेस होती हैं। आपने गोल का कॉन्सेप्ट कभी सुना है? व्हाट इज गोल? गोल क्या होता है हमारी लाइफ में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एनीवन, कोई एक बंदा जो गोल को सही से डिफाइन कर सके एग्जैक्टली। सर गोल पे किसी को भी नहीं एक्चुअली पता? यही चीज होती है ना कि लाइक हम लोग किस तरीके से एम्बिशंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में, कि ये हमारे सेट डिजायर्ड गोल्स होंगे। एट टू सम एक्सटेंट तो हम इसको किस तरीके से अचीव करेंगे, हम एक माइलस्टोन सेट करते हैं। आफ्टर अचीविंग दोज माइलस्टोन्स वी अचीव द बिगर गोल इन लाइफ। यहाँ पे फिर कंफ्यूजन एक स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विश एंड गोल। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी चीज के लिए डिजायर्ड है देन इट्स योर ड्रीम। माय क्वेश्चन इज जस्ट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विश एंड गोल। सर विशेस Sir, बहुत ज्यादा wish- हो सकती हैं, लेकिन गोल जो है वो सिर्फ एक होता है। विशेस और ख्वाब विश बहुत Yes. ज्यादा ज्यादा हो होते हैं, सकती है, लेकिन गोल एक गोल होगा। एक है। ओके, सर विश ये होती है ना कि आप ठीक है। उसे कोशिश करते हैं कि आपको मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज मिल जाए, ठीक है, अगर नहीं मिली तो दैट्स ओके। और गोल ये होता है यानी कि आप उसके पीछे लग जाते हैं कि मैं ये अचीव करके रहूंगा। ठीक है। सर मेरी नज़र में विश और गोल में ये डिफरेंस होता है कि विश जो है एक इनिशियल पॉइंट होता है गोल का। विश अगर आप किसी ठीक है। चीज की करते हो तो उसे ही एग्जीक्यूट करते हो एक डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन को आप गोल तक लेके जाते हो। सो ये वो टर्म्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है। किसी न किसी फेज पे इनिशियल पॉइंट पे विश लाई करती है, मिडिल लाइन में डायरेक्शन लाई करती है, देन आपका गोल लाई करती है। ओके, एक और चीज मैं बता दूं, यू आर सपोज टू स्पीक because I will not be checking the chat box, right? Okay, thank you so much to all of you and यहाँ से हमारे टॉपिक का आगाज होता है इस क्वेश्चन से। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जहाँ पे भी किसी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी ओके, अभी क्लियर है? तो हमेशा गोल सेटिंग का जो कॉन्सेप्ट मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि जब तक आपको गोल सेटिंग का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आपके लिए कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी भी फील्ड में आपके पास स्किल्स भी होंगे लेकिन आप पैसा नहीं कमा रहे होंगे, ठीक है? तो उसकी रीजन भी यही होंगी कि बिकॉज ऑफ दैट कि आपने सीखा ही नहीं कि गोल एग्जैक्टली सेट किया कैसे जाए। तो यहाँ से हमारे टॉपिक का बेसिकली आगाज होता है। मेक श्योर कि मेरी आवाज आप सबको ठीक आ रही है और आप सबको मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है। यस सर। यस सर। आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है आवाज। बाकी सब अपने म्यूट Thank माइक you. जो है म्यूट कर लीजिए। Yeah, please everyone please mute your mic until I ask you any question. So okay, so this is the basic difference between अपना माइक प्लीज सब लोग म्यूट रखिएगा क्योंकि डिस्टॉर्शन हो जाएगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विश एंड गोल। आपका गोल और आपकी विश जो है उसमें डिफरेंस क्या है? आपके बेसिकली बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आप एक दिन में क्या करना चाहते हैं, आप एक साल में क्या करना चाहते हैं, या फिर आप पूरी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आपके इस सर्कल से रिलेटेड डिफरेंट ड्रीम्स होंगे। यू विल बी हैविंग डिफरेंट ड्रीम्स। अब वो तमाम ड्रीम्स जो आपके होंगे, आपके ख्वाब, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पांडे ना तो वहां रोज आप प्लीज इस चीज को चेक कीजिएगा, जिसका माइक ऑन हो उसको आप फौरन म्यूट कर दीजिएगा।
लेकिन मुझे ना म्यूट कीजिएगा। ओके, सो आपके जितने भी ख्वाब हैं, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, उनके लिए अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, अ प्रॉपर प्लान, then it will become your goal. For example, if you want to be an assistant commissioner, then what is plan? You should know about the terms and conditions. You should know about the qualification, and you should know about each and everything कि आपको उसके लिए क्या करना है। ये मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट है, एक बंदा जो असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहता है, उसके लिए प्लानिंग क्या होगी कि वो इस चीज को समझ ले कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मुझे अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना पड़ेगा और मुझे क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी। आफ्टर दैट मुझे यू आर हैविंग अ प्लान। आफ्टर दैट आपको कौन सी अकेडमी ज्वाइन करनी है एंड सो ऑन। इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, देन व्हाट इज योर प्लानिंग? प्लानिंग इज दैट कि आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज क्या होंगी, एंड आप कहाँ पे सरवाइव करना चाहते हैं, कैसे टीम बनाएंगे, उस टीम को लेके कैसे चलेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, एंड आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके क्लाइंट्स कौन है, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है बिजनेस करने के लिए। ये सारी चीजें अभी आप इस सेशन में सीखेंगे। स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग और सारे जो स्किल्स हैं उनको आप सीखेंगे कि आपने उनको कौन कौन सी चीजों को सीखना है टू बिकम अ बिजनेसमैन एंड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बट द concept of goal setting should be clear, that if you have a plan, proper plan for your dream, then it's your goal. But if you have no plan for your dream, then it will become your wish. For example, गाड़ी लेना चाहता हूँ, कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट कहता है मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, और ठीक है, देखते हैं, गाड़ी लेते हैं, पैसे हैं पास, कुछ और देख लेते हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अक्सर बच्चों से पूछे ना कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहेंगे हम ना फौजी बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि उन्होंने वो चीजें देखी ही नहीं, उन्होंने पूरा समझा ही नहीं कि कैरियर कौन कौन से हैं। तो वो कहेंगे हम फौजी बनना चाहते हैं या फिर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये वो प्रोफेशन हैं जो अच्छे हैं, जिनमें आपका अच्छा कैरियर बन जाता है या आपका ज्यादा स्कोप होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक प्रोफेशनल इंसान की, तो वो जब एक ख्वाब देखता है, उसके पास जब एक ड्रीम होता है, देन ही इज सपोज्ड टू मेक अ प्लान कि मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, मैं इसको कैसे अचीव करूंगा, मेरे पास क्या हर्डल्स आएंगी, मुझे क्या क्या करना चाहिए। बेसिकली दिस इज कॉल्ड दैट यू आर हैविंग अ प्लान फॉर योर ड्रीम। नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि आपकी लाइफ में अगर आपका कोई भी ड्रीम ऐसा है जिसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लान है और आप उस पर डेडलाइन भी लगा दो कि मैं इस चीज को कितनी देर में अचीव करूंगा, देन इट विल बिकम योर गोल। और अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, यू आर नॉट हैविंग अ प्लान, तो फिर ऐसा होगा कि आप किसी भी डिग्री में एडमिशन लेंगे, बट आपके पास कोई भी प्लान नहीं होगा। आप यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, आप 4 साल स्टडी भी करेंगे, एट द एंड आपके पास डिग्री भी होगी और उसके बाद आप जॉब ढूंढ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लान नहीं था। और अगर आपके पास कोई प्लान होता, तो फिर आपका कनेक्शन डिग्री से ना होता, डिग्री आपकी तरबियत कर रही होती, लेकिन आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो वहीं से शुरू हो जाता है जब आपका प्लान स्टार्ट हो चुका होता। तो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विश एंड गोल। ट्राई टू मेक योर ड्रीम्स योर गोल्स। आपके वो तमाम ड्रीम्स, आपके वो सारे ड्रीम्स जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जिनके लिए आप पैशनेट हैं, उनको अपने गोल्स बनाएं। क्लियर है जी? आपके जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे ना, आप उनको अपने पास नोट करेंगे और मेरे से एंड पे पूछेंगे। मेक योर गोल स्मार्ट। आपके जो गोल्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। व्हाट इज स्मार्ट गोल? इट्स नॉट स्मार्ट बेसिकली। स्मार्ट मीन्स इट्स अ स्मार्ट फॉर्मूला। एक स्मार्ट फॉर्मूला है जो आपने अपने गोल सेट करते हुए अपने आप पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे? बेसिकली जब आप अपना गोल सेट कर रहे होंगे, उस वक्त इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये मेरी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो रही है, जो इस वक्त स्क्रीन पे चीज लिखी हुई आ रही है,
You are having this SMART formula? Yes, sir. Okay. So basically SMART formula क्या कहता है और what is the methodology of this formula? First of all, while you will be setting your goal, you have to check these 5 things. मिस निम्रा, आप काइंडली अपना माइक म्यूट कीजिए। तो ये 5 वो चीजें हैं जिनको आपको चेक करना है जब आप अपने गोल सेट कर रहे होंगे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल योर गोल्स शुड बी स्पेसिफिक। अगर ऐसा होगा कि आप डॉक्टर भी बनना चाहते होंगे, आप बिजनेस भी करना चाहते होंगे, एट द सेम टाइम आप अपना एक इंस्टीट्यूट भी बनाना चाहते होंगे और बहुत सारी चीजें चाहते होंगे, तो मुश्किल हो जाएगा इतनी सारी चीजों को यकदम से अचीव करना। ओके, सो यू आर सपोज टू मूव ऑन स्टेप बाय स्टेप, कि आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को मैनेज करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल योर गोल शुड बी स्पेसिफिक। वो कोई एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। वो डेली बेसिस पे भी हो सकता है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है और ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है। मेरी एक बात याद रख लीजिए, अगर ये बातें आपकी समझ में आ गई तो आप कामयाब हो जाएंगे जिस फील्ड से भी आपका ताल्लुक है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो उसमें भी गोल सेटिंग का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने कैरियर को बिल्ड कर रहे हैं, फिर भी ये होना बड़ा जरूरी है। और अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आप यू आर हैविंग सम स्किल्स एंड एट द सेम टाइम यू वांट टू सेट योर गोल, ये आपको वहां पे फायदा देगा शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करने के लिए। योर गोल शुड बी स्पेसिफिक एंड योर गोल शुड बी मेजरेबल। जो भी गोल आपने सेट किया, इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आपका गोल मेजरेबल कैसे होगा? जब आपका गोल सेट हो चुका होगा, आपकी प्लानिंग बन चुकी होगी, so you will be working on it and you will be achieving something day by day. डे बाय डे आप कुछ चीजें अचीव कर रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल रहा होगा कि मेरा गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड कि आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। और इसके लिए एक टिप मैं जो आपको देना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अपनी चीजों को अपने पास नोट डाउन करें। कैसे? हर वो चीज जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं और आप एक साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, एक हफ्ते में क्या अचीव करना चाहते हैं, एक महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, एक दिन में क्या अचीव करना चाहते हैं, वो सारी अपनी अचीवमेंट अपने पेपर पे लिखिए और उसको अपने सामने पेस्ट कीजिए। जिस जगह पे मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को यही चीज समझाता हूँ कि वो सारी चीजें जो आप अचीव करना चाहते हैं, उनको अपने पास एक पेज पे लिखिए, उनको एक चार्ट पे लिखिए और अपने बेडरूम में अपने सामने पेस्ट कर लीजिए, ताकि डेली जब आप उठेंगे तो आप उसको देख रहे होंगे कि आपने अचीव क्या करना है। आप इस चीज को डेली बेसिस पे देख रहे होंगे कि मेरा टारगेट क्या है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है साल के आगाज में, जैसे ही 2021 का आगाज हुआ, आपने अपने गोल्स, अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट की थी, लेकिन उसके बाद जो है वो आप उसको भूल गए। उसके बाद आपने उसके बारे में फोकस ही नहीं किया, आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आपने उसको कहीं पे लिखा ही नहीं था, वो आपके पेपर पे लिख के आपके सामने चस्पा हुआ ही नहीं था। अगर वो आपके सामने पेस्ट हुआ होता तो आप देख सकते और इस चीज को मेजर कर सकते कि मैंने 1 महीने में क्या अचीव किया है, मेरी क्या अचीवमेंट है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, जिसका आज हमारा टॉपिक है, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें भी अगर मेरे सामने वो मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक और मेरी चीजें लिख के पेस्ट हुई नहीं होंगी और मैंने अपनी डायरी पे नहीं लिखा कि व्हाट आई हैव टू अचीव एंड व्हाट आई हैव टू डू, तो फिर वो चीजें मुझे पता ही नहीं चलेंगी कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, या मेरी 1 महीने की प्रोग्रेस क्या है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स के साथ भी होती है, एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी होती है और प्रोफेशनल्स के साथ भी होती है, कि वो अपनी चीजों को लिखते ही नहीं है। जब वो अपनी चीजों को अपने पास नोट डाउन नहीं करते, अपने डेली एजेंडास को लिखते नहीं है, तो एट द एंड होता ये है कि बहुत सारी चीजों को वो अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन चीजों को हम भूल जाते हैं और वो चीजें स्किप हो जाती।
दिस इज कॉल्ड कि योर गोल शुड बी मेजरेबल। आपको पता चलता रहे कि जो गोल आपने सेट किया है, जो ऑब्जेक्टिव आपका है, क्या वो अटेन हो रहा है कि नहीं। दैट्स इट। अच्छा, योर गोल शुड बी अटेनेबल एज वेल। और कैसे पता चलेगा कि आपका गोल अटेनेबल है कि नहीं? राइट, पता ऐसे चलेगा कि अगर आपने कोई ऐसा गोल सेट कर लिया है जो आपको पता है कि आप अचीव ही नहीं कर सकते, आप वो कर ही नहीं पाएंगे, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। आपने कोई ऐसा गोल सेट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने गोल ये सेट कर लिया कि मैंने डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर, एंड यू आर हैविंग 700 मार्क्स इन मैट्रिक व्हेन यू सेट योर गोल कि आपने डॉक्टर बनना है। तो जस्ट लेट मी नाउ, क्या ये एक अटेनेबल गोल है? ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स ऑलरेडी कम है, और विच मीन्स कि यू आर हैविंग नॉट रेलिवेंट कैपेबिलिटी। जिस फील्ड में आप हो, जिस फील्ड ऑफ स्टडी में आप हो, आपके पास उसकी रेलिवेंट कैपेबिलिटीज ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपके लिए वो गोल को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अटेनेबल भी नहीं होगा। एट द एंड क्या होगा, आप एमकैट को क्लियर नहीं कर सकते होंगे और डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। अगर रेदर देन दैट आपने यही चीज थोड़ी पहले प्लान की होती और आप इस चीज को मेजर कर रहे होते कि मुझे मैट्रिक में कितने मार्क्स चाहिए, मुझे इंटर में कितने चाहिए, और मुझे एमकैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो एट दैट टाइम आप मेजर कर रहे होते और आप देख रहे होते कि क्या वो मेरी अचीवमेंट्स बन रही है कि नहीं, तो आपका ये गोल अटेनेबल बन जाता। इसी तरह अगर मैं इस चीज को अपना गोल बना लूं कि मैंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो ये अभी अटेनेबल नहीं है, तो मैं जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तो दैट मीन्स कि गोल अभी राइट नाउ अटेनेबल नहीं है। आपका गोल आपका रेलिवेंट होना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपका गोल रेलिवेंट है या नहीं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को इस चीज का पता ही नहीं चलता कि उनका रेलिवेंट गोल कौन सा है। और बेसिकली प्रॉब्लम फिर ये आती है बेसिकली कि आपको आपके पैशन का पता ही नहीं चल पाता। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। पाकिस्तान में मोर देन 90% कैरियर्स का जो सिलेक्शन है वो कैसे होती है कि मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसका पाकिस्तान में बड़ा स्कोप है, या फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसलिए बन रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स को बड़ा पसंद है, या फिर मैं इसलिए बन रहा हूँ कि मेरा एक कजन था जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना और वो सक्सेसफुल हो गया और उसके पास गाड़ी है, तो मैं उससे इंस्पायर हो गया। और इस चीज का पता ही नहीं कि मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनूंगा तो फील्ड में काम क्या होगा, मुझे कैसा बंदा होना चाहिए, मुझे मेरी मार्केटिंग स्किल्स क्या होने चाहिए, मेरी अपनी अटेनेबिलिटी क्या होनी चाहिए, और व्हाट आर द बेसिकली रिक्वायरमेंट्स टू बी अ सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इन चीजों का पता ही नहीं और आप अपनी डिग्री को स्टार्ट कर चुके होंगे। एट द एंड आप कहेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या फिर कंप्यूटर साइंस का या कोई भी सब्जेक्ट उसका स्कोप नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं आपको फौरन रोक दूंगा क्योंकि इस स्टेटमेंट के मैं बहुत खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान में किसी चीज का स्कोप नहीं है। क्यों? मुझे कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बता दीजिए, कोई एक ऐसा फील्ड बता दीजिए जिसके बारे में आपको लगता है कि पाकिस्तान में उसका स्कोप नहीं है। तो है आप में से बंदा कोई एक सब्जेक्ट बता सके, कोई एक फील्ड, एनीवन जिसका पाकिस्तान में स्कोप नहीं है? अगर कोई भी आपको लगता है ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसा फील्ड, तो आप अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं। सर क्रिप्टो करेंसी का नहीं है स्कोप पाकिस्तान में। इट्स नॉट बेसिकली अ फील्ड, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कि रातों रात हमारे अलमारी में कोई $2000 आना शुरू हो जाएंगे, फिर अगले दिन 5000 आएंगे। तो इट्स बेसिकली लाइक डिफरेंट सर एक्टिविटी। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग। या क्या कहा आपने? बेसिकली पाकिस्तान में आपका इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो चीज आपके यहाँ हो ही नहीं रही, जो आपसे रेलिवेंट नहीं है, जिसकी ट्रेनिंग ही आपके पास नहीं है, उसका आपको स्कोप एक्सप्लेन करना या उसको अटेन करना, इट्स अ डिफरेंट एक्टिविटी। लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट विच यू आर स्टडिंग इन योर यूनिवर्सिटी। कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक फील्ड ऐसा जिसका आपको लगता है कि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है।
जैसे क्रिप्टो करेंसी है तो एक डिफरेंट एक्टिविटी है, मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जो इससे लाखों कमा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल इनकम मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये कहना गलत है कि इसका पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। कोई और एक ऐसा भी, एनी वन, जस्ट वन, जिस आपको लगता है कि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। सर जी बॉटनी You will not zoologist be able to, जी बॉटनी zoologist बॉटनी का किसने कहा कि स्कोप नहीं है? आपको जब पता ही नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट के बाद आपके पास डेस्टिनेशंस कौन-कौन सी हैं, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आज भी आपकी जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है और जो आपके ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आज भी बॉटनी और ज़ूलॉजी का स्कोप है। और आपके डिपार्टमेंट्स में अगर प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स और टीचर्स ना हो, तो आपको कौन बॉटनी एंड ज़ूलॉजी पढ़ाएगा? वी आर हैविंग स्कोप ऑफ एवरी फील्ड, इवन इफ यू विल टॉक अबाउट द उर्दू। उर्दू एक ऐसा, सॉरी टू से, लेकिन उर्दू एक ऐसा कंसेप्ट है, हम अपने बच्चों को उर्दू के सब्जेक्ट में बैचलर्स या मास्टर्स नहीं करवाते जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यार उर्दू का पाकिस्तान में कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन एट द अदर एंड अगर आप मार्केट में ढूंढने के लिए जाएं तो आपको अच्छे उर्दू राइटर, स्क्रिप्ट राइटर नहीं मिलेंगे, ड्रामा राइटर नहीं मिलेंगे, विच मीन्स दैट जल्दी नहीं मिलेंगे और बहुत रेयर मिलेंगे ना, जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरे उतर सके। तो इट्स जस्ट अबाउट दैट कि आपको आप एक किसी भी चीज का स्कोप डिफाइन कर ही नहीं सकते, हर चीज का स्कोप मौजूद है। यू जस्ट हैव टू बिकम अ पैशनेट एंड अ प्रोफेशनल एंड अ स्पेशलाइज्ड पर्सन। अच्छा, व्हाई आई एम टेलिंग दीज थिंग्स टू यू? जी राबिया, आप कुछ कहना चाह रही? ओके, ये चीजें आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं और वो है क्या, और उसमें आपने अपने आप को किस फील्ड में रखना है, कैसे आपने अपने आप को रेलिवेंट रखना है। सो जस्ट अप्लाई स्मार्ट फॉर्मूला अपॉन योर गोल्स वेन एवर यू वांट टू अचीव समथिंग एंड यू वांट टू सेट अ गोल, जस्ट अप्लाई स्मार्ट फॉर्मूला, सिंपल इज दैट। अगर आप अपने गोल्स पे स्मार्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, you will be able to achieve it, right? So let's move on. Concept is just that digital marketing, graphic designing और ये सारे skills हैं। And the most common question जो पूछा जाता है कि हमारे लिए, आप प्लीज अपने माइक म्यूट कर दीजिए, आपकी डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है। मिस फरहीन, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। Okay, so why skills are essential? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है कि स्किल्स एसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है। एंड अब क्योंकि कोविड-19 के बाद हम इस चीज को समझ चुके हैं कि स्किल्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो राइट नाउ हम इस चीज को एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल नहीं। इन 2018 व्हेन आई वाज टीचिंग डिजिटल मार्केटिंग इन अरफा करीम सॉफ्टवेयर हाउस, एट दैट टाइम जब स्टूडेंट्स आते थे मेरे पास और मैं उनको कंसल्टेंसी देता था, उनकी करियर काउंसलिंग करता था, तो बड़ा मुश्किल होता था उनको ये चीज समझाना कि काइंडली आप स्किल्स सीखें और स्किल्स सीखने के बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में काम करें, आप ज्यादा कामयाब होंगे और जल्दी कामयाब होंगे। लेकिन अब इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि कोविड-19 में आपने एक चीज सीख ली है कि सिर्फ वो बंदा पेंडेमिक में भी सरवाइव कर सकता है जिसके पास कोई स्किल्स है। वो डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल्स है, या फिर आपके पास जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग या कंटेंट राइटिंग के स्किल्स है।
और एक क्वेश्चन उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है, जो आपके पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि कौन से स्किल्स हैं जो जरूरी हैं, विच स्किल्स आर एसेंशियल. तो question, the answer of this question is very simple. Right now in today's era, to survive in 2021, ये 5 skills ऐसे हैं जो आपके पास मस्ट होने चाहिए. इफ यू वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो इन स्किल्स के बारे में अगर नहीं पता होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है जी. अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग के स्किल्स नहीं होंगे, अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल्स नहीं होंगे, अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स नहीं होंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये वाले स्किल्स अगर आपके पास नहीं होंगे, तो आप अपना बिजनेस करने में आपको मुश्किलात का सामना करना होगा. और अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अपने घर से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, स्टिल यू हैव टू लर्न दीज स्किल्स, बिकॉज यही वो स्किल्स हैं जो ट्रेंडिंग में टॉप पे जा रहे हैं कि इन स्किल्स में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे और आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी. अगर आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है या आप चाहते हैं कि पेंडेमिक में आप सर्वाइव कर सकें, बेसिकली यू हैव टू लर्न दीज स्किल्स. लेट मी हैव अ लिटिल बिट शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कंटेंट राइटिंग. व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? सिंपल इज दैट दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग. आपने क्रिएटिव लिखना है, शॉर्ट लिखना है और आपका मैसेज आपकी ऑडियंस तक पहुंच जाए और वो आपके साथ इंगेज हो जाए. मैंने अक्सर देखा है डिफरेंट बिजनेसेस और डिफरेंट लोग जब बेसिकली कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं या अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम जो है वो बहुत लेंथी कंटेंट लिख रहे होते हैं, लंबी लंबी कोटेशन, ये होगा, ये सर्विसेज है, ये उसकी प्राइस है एंड सो ऑन. बट एट द अदर हैंड, अगर आप कंटेंट राइटिंग को प्रॉपरली समझें और उसको सीखें, तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि आपको शॉर्ट लिखना है, थोड़ा लिखना है और अपने अपने कंटेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने हैं कि हर बंदा आपसे आके कुछ ना कुछ पूछे और आपके साथ इंगेज हो जाए कि ये क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है. अगर यहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर्स है या बिजनेस स्टार्टअप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज मेरी इस बात को अपने पास नोट कर लीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए. आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट हो, इजी टू रीड हो और उसके अंदर इंगेजमेंट मौजूद हो कि आपके साथ लोग इंगेज हो एंड सो ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कंटेंट राइटिंग. आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए. बेशक आप प्रो ना बन सके, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए to be a freelancer, to be a businessman and startup entrepreneur, anything else. क्योंकि इसके बगैर आप फ्रीलांसिंग भी उतने अच्छे से नहीं कर सकेंगे जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे. अच्छा, उसके बाद आपको ग्राफिक डिजाइनिंग जरूर आनी चाहिए. जब आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग इज जस्ट लाइक आपने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, इन चीजों को यूज करते हुए पोस्टर्स एंड फ्लायर्स एंड लोगोज एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें बनानी होती हैं बेसिकली. इसके थ्रू भी आप फ्रीलांसिंग कर सकेंगे, फाइवर पे, अपवर्क पे, सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर सकेंगे. यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिनको आप अवेल कर सकेंगे व्हेन यू आर हैविंग द स्किल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन. एंड थर्ड पे आपके पास आता है डिजिटल मार्केटिंग, व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ब्रीफली राइट नाउ. We will be having brief sessions on graphic designing, on content writing and so on. So don't worry about that. Just stay with me. एंड इन फर्दर अपकमिंग डेज हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग पे और कंटेंट राइटिंग पे, कम्युनिकेशन पे भी सेशंस होंगे, तो आप ये चीजें भी सीखेंगे. अच्छा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना जरूरी है. बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे होते कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस. तो इस चीज को क्लियर होना बड़ा जरूरी है, इस चीज का समझना बड़ा जरूरी है. डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो रही है, मेरी स्लाइड्स शेयर हो रही हैं एंड माय वॉइस इज क्लियर बिकॉज राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर किसी के साथ कोई डिस्टॉर्शन है मुझे अभी बता दीजिए.
क्लियर आ रही है आवाज सबको? माय वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. Promotion of your products or services using internet and other forms of digital communication to get potential clients या potential customers is called digital marketing. आप इंटरनेट का यूज करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपनी, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, आपका सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। सिंपल इज दैट कि आप इंटरनेट का यूज करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करें। बिकॉज इफ यू आर अ डॉक्टर यू हैव टू प्रमोट योर सर्विसेज, इफ यू आर एन आर्टिस्ट you have to promote your service. But if you are a online store, you are having an online store in which you have different products, then you are supposed to promote your products. So whatever you have, if you are promoting it online through use of internet, then you are doing digital marketing. So that's it. But we are having some further concepts in digital marketing, which is that what is social media management, what is social media marketing, and what is search engine optimization. अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली हैव फर्दर कैटेगरी जिनमें आपके पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आ जाता है, आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाता है, affiliate marketing भी आ जाता है basically, जिसमें Amazon, Draaz and so on, these type of things which we are not going to discuss right now. We will discuss in upcoming sessions inshallah that what is Amazon and what is Draaz and how to earn money through Amazon and so on. So we will be having session about that as well. What is social media management? अच्छा, होता ये है कि आपने बेसिकली फेसबुक पे पेज क्रिएट करना, पेज बनाना, आपने बेसिकली फेसबुक पे पेज क्रिएट करना, फेसबुक पे पेज बनाना, उसको मैनेज करना और डेली उस पे एक पोस्ट कर देना। आपने ये चीज जब सीख ली होती है तो आप अपनी सीवी में ऐड कर देते हो दैट वी आर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। क्या बोला? वी आर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। क्यों? क्योंकि आपने फेसबुक पे पोस्ट करना सीख लिया, आपने फेसबुक को मैनेज करना सीख लिया, आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना सीख लिया, आपके इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर्स भी आ गए, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 2000 हो, आपके फॉलोअर्स भी आ गए। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जब ये चीजें आपने सीख ली तो 1 second, I'm sorry. Okay, so we are having it right now. Digital marketing and its category. क्लियर हो रही है शेयर आप सबको अब? जी अब हो रही है। ओके, सो जब आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर लिंक्डइन को मैनेज करना सीख लिया, उस पर पोस्टिंग करना सीख लिया, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज अपनी सीवी में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट ना लिखें, अदरवाइज आप इंटरव्यू देने जाएंगे और वहां पे आप स्टक हो जाएंगे और आपको रिजेक्ट कर देंगे, आप अपनी रेलेवेंट कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर सकेंगे। इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आपने ये चीजें सीख ली है कि कंटेंट लिख के पोस्ट कैसे करना है, you are supposed to find some opportunity of social media management. आपको अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो जिसमें आपने सोशल मीडिया मैनेज करना होगा, इट विल बी अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू और आप इसको अच्छे से रन कर सकोगे, मैनेज कर सकोगे, सरवाइव कर सकोगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने चले गए, वो पूछेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आप कहेंगे सर मुझे आता है और मैं फेसबुक को मैनेज भी कर लेता हूँ, पोस्ट भी कर लेता हूँ, ऐड हाँ वो भी लगा लेता हूँ। तो जो चीजें आप नहीं भी कर रहे होंगे वो आप बताएंगे, तो एज अ रिजल्ट आप रिजेक्ट होंगे। आई एम श्योर इन दिस। आई हैव इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स। रिसेंटली मुझे एक बिजनेस डेवलपमेंट की कैटेगरी में एक प्रोफेशनल चाहिए था, स्टिल आई रिक्वायर। अगर आप में से कोई बिजनेस डेवलपमेंट में एक्सपर्ट है तो काइंडली सेंड मी योर सीवी और माय टीम मेंबर एज वेल। तो मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए, लेकिन दे आर नॉट हैविंग स्किल्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, so I reject it, simple as that. अगर आपके पास उस चीज के स्किल नहीं है जो आपने अपनी सीवी में लिख दिए तो आप रिजेक्ट होंगे।
और ऐसा नहीं है कि अगर आपने फेसबुक मैनेज करना, इंस्टाग्राम मैनेज करना सीख लिया है तो आपने जो है वो ये कोई बुरी चीज है, या फिर आप उसको यूं समझ लें कि यार अब तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। दिस इज अ स्किल बेसिकली, यू आर गिविंग योर टाइम, ट्राई टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा ब्रांड, कोई इंटरनेशनल ब्रांड जो आपको हायर करे फॉर द सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मेरे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, एक बच्ची है खदीजा, शायद वो इस वक्त इस क्लास में है या नहीं है, शी इज माय स्टूडेंट एट एक्मा कॉलेज। उसने जस्ट 3 मंथ में मेरे से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया एक्मा कॉलेज में। बेसिकली एज अरूज ने बताया अभी थोड़ी देर पहले अरूज ने कि मैं वहां पे लेक्चरर हूँ एक्मा कॉलेज में। तो वहां पे वो बच्ची शी इज जस्ट इंटरमीडिएट स्टूडेंट, आफ्टर दैट शी इज डूइंग समथिंग बट शी हैव जस्ट इंटरमीडिएट डिग्री। तो उसने क्या किया मेरे से, जब वो सीख रही थी ड्यूरिंग हर कोर्स, आफ्टर जस्ट 1 मंथ जब उसने मैनेजमेंट सीख लिया तो उसे एक यूके बेस्ड एक ब्रांड में जॉब मिली, जहां पे वो बेसिकली जो है वो जस्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रही है, नथिंग एल्स, जस्ट उनके प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट कर रही है। अब आप भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ 90% जो बिजनेस है वो थ्रू सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए हो रहा है। तो अगर आपने ये चीज सीख लिया तो इसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो उसकी कैटेगरी है। सेकंड, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? आप प्लीज अपने माइक अनम्यूट अपने माइक म्यूट रखिएगा। अगर आप में से अब किसी का माइक इस तरह से म्यूट हुआ तो वो एक अनएथिकल एक्टिविटी होगी और आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो second category is that social media marketing. What is social media marketing? Social media marketing is basically just that कि आप social media platforms का use कर रहे हो, right? You are using social media platforms not for only the purpose of posting content and so on, but for the purpose of promotion. कि आप वहां से सिर्फ डेली एक पोस्ट नहीं कर रहे। ये मैं बिल्कुल भी कोई अपने से बनाई हुई बातें आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, मैं आपके साथ वो चीजें शेयर कर रहा हूँ जो रिसर्च बेस्ड है, ठीक है? रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज जो मैंने खुद देखी, जो मैंने अपनी आंखों से देखी या प्रैक्टिकली देखी, मेरे साथ ऐसा हुआ, या फिर मैंने जब बच्चों के इंटरव्यूज किए तब मैंने ये चीज फेस की। So that was all about that. Okay, so after that आपने अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी तो आपने क्या क्या सीखा होगा, या व्हाट यू हैव टू लर्न इन सोशल मीडिया मार्केटिंग? You just have to learn the ads, campaigns, promotional ads, paid ads on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn, and so on. यानी आपको इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए प्रमोशनल एड्स क्रिएट करना सीखना है, राइट? आपको इन तमाम चीजों को सीखना है कि आपने एड्स कैसे लगाने। लाइक आप फेसबुक पे, सिंपल इज दैट, आप फेसबुक पे जब एक एड लगाएंगे तो एट दैट टाइम जो है वो आप उस पे अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे या अपनी सर्विस को प्रमोट कर रहे होंगे, राइट? आप अपने पेड एड्स लगाएंगे और डेफिनेटली इट्स अ पेड प्रोसेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी इन्वेस्ट ना करें और ये सारी चीजें सीख भी लें और उसके बाद आप एड्स भी लगाएं, तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट ना हो, बस आप पैसे ही कमाई जाएं और अर्निंग ही आपकी होती रहे। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो ही आप अर्न करेंगे, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज जस्ट दैट कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे एड्स लगा रहे हो। बट इफ यू आर यूजिंग गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स एंड सो ऑन, यूट्यूब एड्स एंड सो ऑन,
then it will not be a part of social media marketing. It will be a digital marketing or SEO as well. Search engine optimization. What is that? Search engine optimization simple is that कि आपने अपने सर्च इंजन में जाके कुछ सर्च किया. फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ क्लॉथिंग ब्रांड, मैंने कपड़े खरीदने हैं या मैं क्लॉथिंग इस तरह कुछ सर्च करता हूँ और मेरे सामने उस वक्त सबसे टॉप पे एक ब्रांड आ जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है. इसी तरह लवेजा, शी इज आवर सीनियर कंटेंट क्रिएटर, शी इज हियर राइट नाउ इन दिस मीटिंग. लवेजा का लेट्स सपोज एक क्लॉथिंग ब्रांड है और मैं सर्च करता हूँ तो मेरे सामने सबसे टॉप पे वो आता है, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको सबसे पहले ओपन करूं और अगर उसकी सर्विसेज अच्छी हैं तो मैं उसको अवेल करूं. ऋषिका प्लीज अपना माइक यूज कर दीजिए. और उस वक्त जो है वो आप अगर टॉप पे जिस चीज को देख रहे होंगे उस वक्त जो है वो आप उसको चेक कर रहे होंगे. जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं टॉप जो 3 to 4 सर्च होती है उसको आप फौरन से जो है वो ओपन करते हो. देख मिस इकरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मिस इकरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि आपने सर्च इंजन में जाके कुछ सर्च किया और टॉप पे या किसी ने कुछ सर्च किया और आपका ब्रांड उसको टॉप पे मिल जाए. अब डेफिनेटली ये भी एक पेड प्रोसेस है, आपको पेड एड्स लगानी होगी, आपको ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ. देयर इज अ कंप्लीट टॉपिक ऑफ एसईओ जिसमें काफी मेजर चीजें आ जाती हैं. आप एनालिटिक्स को भी पढ़ते हो, गूगल एड्स को भी पढ़ते हो एंड सो ऑन. वी विल बी डिस्कसिंग इन अपकमिंग कोर्सेज एंड सेशंस इन डिटेल्स कि ये चीजें होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सो ऑन, ऑल दीज थिंग्स. तो अच्छा, फर्दर ये 3 वो चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है. तो डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है ये तीनों एक्टिविटीज, राइट? तो प्लीज मेक श्योर योर कंसेप्ट इन दिस कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ठीक है. डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है तो वो भी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग ही का ही एक हिस्सा है. और इसी तरह अगर आप कहें कि आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो भी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, जब हम एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, व्हाट एक्चुअली वी हैव टू लर्न, हमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें सीख लेनी चाहिए. Here is a list of things which you have to learn. इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपको मैं करवा चुका हूँ अभी राइट नाउ कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग. आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए कि इस चीज को आप क्लियरली समझ लीजिएगा. इस चीज को प्लीज आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा सारे टॉपिक्स को, और इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इनके बारे में. और इन चीजों को आपने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, सारी चीजों को. You guys are writing your names in chat box, okay? So are you guys focused to me right now? Should I continue? Sir, I have a question. Okay. May I ask? Yeah. Sir, I want to ask, by digital marketing, can we learn how to enhance or increase group followers or Instagram followers? Is that related somehow, or digital marketing is not Yeah, related to it's that? totally related to that.
No, it's totally related to that. The reason is just that, just have a little repetition. I'm going to explain all these things. आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आई एम टीचिंग दिस फ्रॉम लास्ट 4 years इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट. आई हैव ट्रेन कॉर्पोरेट पीपल, वो कंपनीज जिनके मैनेजर्स और उनकी 1000+ की टीम होती है, मैं उनको भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ. मैनेजमेंट हाउस में काम कर चुका हूँ. आई नो ऑल अबाउट योर क्यूरीज कि आपके जहन में इस वक्त क्या क्वेश्चन आ रहे हैं. जस्ट लिसन टू मी, और एट द एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझे बताइएगा. कोई ऐसा रहेगा ही नहीं, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू Okay, लर्न thank अबाउट. you. इफ एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट होल्ड डाउन और उसको अपने पास नोट कीजिए. जस्ट आस्क मी एट द एंड ऑफ दिस सेशन, अदरवाइज मेरा फ्लो टूट जाएगा. सो इफ यू वांट टू बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, what are the things which you have to learn? Just clear this simple concept. Okay, what are the things which you have to learn? So basically these are the concepts. First of all, you should have a complete introduction of digital marketing. आपको पता हो कि digital marketing क्या है, हमारे clients क्या हैं, हम इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, और हम इसके थ्रू जो है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं. जब हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, हम सेल्स फनल कैसे बनाएंगे. जब हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक योर स्ट्रैटेजी, राइट. So it's all about that, right? So first of all, you should have a brief introduction, which जो मैं आपको दे चुका हूँ already, आप सीख चुके हैं. You should know about the paid tools of digital marketing, all the paid tools. For example, you have SMS marketing tool, जिससे आप एक क्लिक करने से thousands of numbers पे मैसेज कर सकते हैं in just one click. वो पेड टूल होता है, आपको बाय करना पड़ता है और उसको यूज करते हुए आप पे कर रहे होते हैं. लेकिन आपका एक मैसेज, आपने देखा होगा, आपको अक्सर खादी का मैसेज आता है कि हमारा 30% ऑफ है. किसी ने कभी इस चीज को जज किया है कि कभी आपको खादी का मैसेज आया हो या किसी और ब्रांड का मैसेज आया हो? आपको ऐसे मैसेजेस आते होंगे, विच इज SMS मार्केटिंग बेसिकली, राइट. सो रेदर देन दैट जो है वो यू हैव व्हाट्सएप मार्केटिंग. एक क्लिक करने से आप थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मैसेज कर सकेंगे थ्रू व्हाट्सएप, which is possible through WhatsApp marketing software, only through WhatsApp marketing software, which is very easy task. So these are the things which you have to learn basically. So right, rather than that जो है वो आप rather than that जो है वो आप कुछ और भी पेड टूल्स हैं जिनको आप यूज करते हो for SEO purposes and a lot of other purposes. तो आपको उन तमाम पेड टूल्स का पता होना चाहिए. सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेसिकली जबकि ये 3 से 4 चीजें आती है, लिंक्डइन मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग एंड सो ऑन. अब इसमें यहाँ से शुरू होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया कि विच इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. व्हाट इज फेसबुक मार्केटिंग? पेड कैसे होती है और ऑर्गेनिक कैसे होती है, राइट? अच्छा, सो फेसबुक पे आपने अपना एक पेज क्रिएट किया, राइट. और वो पेज क्रिएट करने के बाद आपने उसको एक कॉर्पोरेट पेज बनाया. अब आपने एक कॉर्पोरेट पेज बना लिया, यू शुड नो अबाउट दैट कि कॉर्पोरेट पेज क्या होता है, उसकी सेटिंग्स क्या होती हैं, आपको उसका इंटरफेस कैसा रखना है. यू विल बी हैविंग डिफरेंट इंटरफेस ऑफ योर फेसबुक पेजेस. कुछ वीडियो क्रिएटर होते हैं तो कुछ शॉप का ऑप्शन दे रहे होते हैं, सम हाउ कुछ सर्विसेज दे रहे होते हैं, या कुछ पब्लिक फिगर होता है. तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज बेसिकली ऑफ इंटरफेस ऑफ फेसबुक पेज. तो फेसबुक पेज को क्रिएट करना, उसको एक गुड लुकिंग पेज बनाना, उसमें डिस्क्रिप्शन, उसमें वेबसाइट, सारी चीजें ऐड करना, जिस कारण के आपने एक कॉर्पोरेट पेज बना लिया. ठीक है जी, आपने कॉर्पोरेट फेसबुक पेज बना लिया, राइट. आफ्टर दैट आपने उस पेज पे जो है वो ऑडियंस को इंक्रीज करना है, उसकी प्रमोशन करनी है, उसके लाइक्स को इंक्रीज करना है,
उसके रिव्यूज को इंक्रीज करना है और उसको थोड़ा एक्टिव करना है, डेली उस पर पोस्टिंग होनी चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग बेसिकली इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री, एनीथिंग एल्स, बट यू आर हैविंग एंड यू आर हैविंग अ फेसबुक पेज जिसपे 120 लाइक्स है। अब आप अपनी एड्स लगाओगे, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा और लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? जो अभी क्वेश्चन एक बच्ची ने पूछा कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग में ये सीखते हैं या नहीं कि लाइक्स कैसे इंक्रीज करना है। बेसिकली अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है और आपको नहीं पता कि फेसबुक पे 10,000 फॉलोअर्स आपने 2-3 दिनों में कैसे गेन करने हैं, तो आई एम सॉरी प्लीज, फिर आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा, आपने अभी तक आपकी कंसल्टेंसी हुई ही नहीं है, आपकी ट्रेनिंग हुई ही नहीं है, क्योंकि पेड एड्स लगा लेना इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, जस्ट पेड एड्स लगाना। वो कोई भी बच्चा जाके अगर यूट्यूब पे वीडियो देखे हाउ टू यूज फेसबुक पेड एड्स, तो वो आपको बता देगा। योर अचीवमेंट इज जस्ट दैट कि आप ये सीख लें कि आपने मिनिमम पैसे इन्वेस्ट करके 200-300 रुपए इन्वेस्ट करके 1000 लाइक्स कैसे कंप्लीट करने। आर यू गाइस गेटिंग मी? दिस इज कार्ड कि आपको फेसबुक पेज की मार्केटिंग आती है, फेसबुक मार्केटिंग आती है। और जब आपके पेज पे 10,000 लाइक्स होंगे, 15,000 लाइक्स होंगे, तब आपको लोग ट्रस्ट करेंगे, ठीक है? तब लोग आपको जल्दी आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेंगे कि यार ये एक स्टेबल पेज है और आपकी उससे ज्यादा बेनिफिशियल चीज होगी, राइट? So this is the concept of Facebook marketing. Rather than that, you should know about Facebook paid ads, right? Paid ads कैसे लगते हैं? Paid ads के थ्रू रिजल्ट कैसे लिया जाता है? What is sales funnel in paid ads and so on. आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज मीन्स कि आप जब एड लगा रहे हैं तो उससे आपको कितनी कन्वर्जन मिल रही है और उससे आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है और उससे आपको आपकी प्रोडक्ट कितनी ज्यादा सेल हो रही है। फॉर एग्जांपल इन माय टीम मिस राबिया इज प्रोफेशनल इन एड्स, फेसबुक एड्स। she is running all the Facebook ads associated to me. इस वर्कशॉप की भी एक एड हमने फेसबुक पे 2 दिन से चलाई हुई थी, उसको भी मिस राबिया ही रन करी थी। शी वाज रिस्पोंडिंग टू द कस्टमर्स एंड शी वाज मेकिंग ऑल द स्ट्रेटजी के कैसे रन होगा, क्या सेल फनल होगी, मैसेजेस, क्योंकि यू आर हैविंग डिफरेंट कैटेगरीज इन फेसबुक एड। आपने सबने देखा होगा फेसबुक पे नीचे आपकी पोस्ट पे लिखा हुआ आ रहा है बूस्ट नाउ। अब आप सब लोग उस पर क्लिक करके उसको बूस्ट कर देंगे। बट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? कि आपने ये सीख लिया कि व्हाट इज द राइट कैटेगरी, you should promote it in engagement or in messages. You should take messages in your messenger or you should take messages in your WhatsApp and so on. ये चीजें आपको जज करनी आनी चाहिए और आपकी अचीवमेंट ये है कि इन जस्ट फ्यू रुपीज यू विल गेट मैक्सिमम रिस्पॉन्स, राइट? और आपका कन्वर्जन रेट कम हो कि आपका पे पर क्लिक है, एक बंदा आपके उस पर क्लिक करे, उससे कम पैसे करे, फिर आप एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अगर आपने भी 2-3 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिया और आपके पास रिजल्ट नहीं है, हमने सिर्फ वी वाज इन्वेस्टिंग जस्ट 500 रुपीज ऑन एड, ठीक है? 500 रुपीज, 500 रुपए लगाए सिर्फ एड पे और उसका रिस्पॉन्स आपके सामने, आप में से भी अक्सर लोग हमें फेसबुक के थ्रू ही हम तक पहुंचे हैं। So we was having a very wide audience through Facebook and so on. What was the strategy? हमने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। हमारी जो प्रोफेशनल बंदी है मिस राबिया जो है, वो जो इसको लीड कर रही थी, उन्होंने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई और शी वाज चेकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। सो रीजन इज जस्ट दैट अगर आप फेसबुक मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, देन आफ्टर दैट आप इस चीज में प्रोफेशनल हो जाने चाहिए कि पेड मार्केटिंग कैसे होती है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे होती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है? ऑर्गेनिकली आप कैसे ऑडियंस को इंगेज करोगे, उनको फेसबुक पे मौजूद ग्रुप्स में कैसे शेयर करोगे एंड सो ऑन, अ लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज जिसके थ्रू आपको करोगे, which we will be discussing in upcoming sessions इंशाल्लाह। Very similar to Instagram। अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात है,
बच्चे कहते हैं हमने डिजिटल मार्केटिंग के हम प्रोफेशनल बन चुके हैं, और क्योंकि आपके अब हम सबके ज़हन में कॉन्सेप्ट ही एक होता है कि जल्दी-जल्दी डिजिटल मार्केटिंग सीखें और अपनी अलमारी को जाके साफ कर दें, जहाँ पे हमने डॉलर्स रखने हैं जो हम कमाएँगे। जो हम फाइवर से जो डॉलर आने वाले हैं, वो हमने जहाँ पे रखने हैं उस अलमारी को फ़ौरन क्लीन कर दें, क्योंकि डॉलर आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो दिस वाज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स जिनको मैंने देखा जो सक्सेसफुल नहीं होते। अब फ्रीलांसर्स क्यों सक्सेसफुल नहीं होते हैं, सारी चीज़ें अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज़ इन टुडेज़ सेशन आई विश कि मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ जो मेरे साथ हुए, जो मैंने सीखा, जो मैंने देखा पिछले 5-6 सालों में जब से मैं ये काम कर रहा था, इससे भी ज़्यादा टाइम। तो इंस्टाग्राम, इन केस ऑफ इंस्टाग्राम, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप एक हफ्ते में 10,000 या 20,000 फॉलोवर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कम से कम पैसे इन्वेस्ट किए कैसे कर सकते हैं और ऑर्गेनिकली कैसे कर सकते हैं। यू आर हैविंग बोथ कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी, आप ऑर्गेनिकली भी इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग जीरो मनी। कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, कोई ऐड नहीं लगाना, आप अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स इंक्रीज कर सकते हो। मेरी ये रिसेंटली हमारा जो एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा था डिजिटल मार्केटिंग का के एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, उसमें मेरी एक बहुत शाइन स्टूडेंट परियाल, शायद वो यहाँ है या नहीं है, शी कंप्लीटेड almost 10,000 followers on Instagram in just 1 week. In 1 week, without investing even a single penny. सुना आप लोगों ने? 1 रुपया भी उसने इन्वेस्ट नहीं किया, और मैं उसका लिंक भी आपको ग्रुप में भेजूंगा, उसको चेक कीजिएगा। उसने 10,000 फॉलोवर 1 वीक में किए। जो उसने सीखा था वो उसने दिन रात उस पर काम किया, बिकॉज द होल स्ट्रेटेजी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएटेड विद स्ट्रगल्स। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, आप पैसा नहीं कमा सकते 100 रुपए से। मेहनत आपको दिन रात करनी पड़ेगी। तो इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिकली आपने अपने फॉलोवर्स कैसे इंक्रीज करने हैं और पेड कैसे करने हैं, दोनों आपको पता होना चाहिए। और इंस्टाग्राम पे कॉर्पोरेट पेज क्या होता है, सबसे पहले हमें पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम पे कॉर्पोरेट पेज कैसे बनता है। हम बस इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के नीचे लिख के कि हमारे 10-15 फॉलोवर होते हैं, नीचे हमने लिखा होता है कि डीएम फॉर पेड प्रमोशन। मैंने देखा है खुद। So I'm so sorry for that. मैं आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा। You all of you are much respected for me. आप मेरे सेशन में मौजूद हो और फर्दर सेशंस में भी आप मौजूद रहोगे। एनी टाइम आपको जहाँ-जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ-जहाँ आपको मेरे से कोई क्वेश्चन होगा, मेरे लाइक कोई काम होगा, I will be available for you all as you are in my WhatsApp group as well. But एक्चुअली अगर आपने ये चीजें सीखी नहीं है, सॉरी टू से, तो फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग अभी नहीं सीखी। ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये सीखना आपके लिए जरूरी है, इनको आपने सीखना है, इनको नोट करना है अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप में शेयर कर दें कोई भी एक बंदा। इसको आपने सीखना है, जहां से मर्जी सीखें, कहीं से जाके कोर्स करें, आपको कोई जगह नहीं मिलती, आप यूट्यूब पे जाके सीखें। मेरे पास आए, मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब पे कौन सा ट्रेनर आपको सिखाएगा, मेरे से सीखें, मेरे पास आए, मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आप ये सारी चीजें नहीं सीखेंगे तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते 100 से, क्योंकि इनमें से हर एक स्किल आपके पास, हर एक स्किल ऐसा है जो आपको इनकम देगा। अगर आपने इंस्टाग्राम की मार्केटिंग सीखनी तो आप दूसरे लोगों को इंस्टाग्राम के पेजेस को प्रमोट करेंगे और आप उनसे पैसे कमा रहे होंगे। यू विल बी अर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई सेलिब्रिटी है, वो कहती है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे 50,000 फॉलोवर्स इंक्रीज करने हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपको मिल गया एंड यू हैव 1 मंथ, डेफिनेटली दिन रात आप काम करें। और इस प्रोजेक्ट के लिए आप 1 लाख से नीचे तो चार्ज नहीं ना करेंगे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के लिए, कि अगर आपने 50,000 फॉलोवर इंक्रीज करने हैं तो आप 60,000, 70,000, 80,000 या इस तरह से चार्ज करेंगे, राइट? और वो बंदा पे करेगा बिकॉज उसको उस चीज की जरूरत है। और इंस्टाग्राम को कैसे एक्टिव किया जाता है, उसकी ऑडियंस को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, और रादर देन दैट जो है वो आप अपने कॉर्पोरेट पेज को गुड लुकिंग कैसे बनाओगे, आपका बिजनेस पेज क्रिएट कैसे होगा और वो गुड लुकिंग कैसे होगा, और उसमें आप व्हाट्सएप और नंबर और जीमेल ऐड कैसे करोगे कि लोग आपसे कॉन्टेक्ट भी कर सकें। बेसिकली हमने अपने अक्सर फेसबुक और व्हाट्सएप के पेजेस पे कनेक्ट होने का ऑप्शन रखा ही नहीं होता कि कोई हमसे कनेक्ट हो सके, राइट? तो अगर ऐसा होगा तो आई एम सो सॉरी, लेकिन आपके वो स्किल्स आपको पे बैक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने उनको मुकम्मल तौर पे सीखा ही नहीं था।
आपने मुकम्मल तौर पे सीखा ही नहीं था इंस्टाग्राम मार्केटिंग को, आपने उसकी ऑर्गेनिक और पेड प्रमोशन सीखी ही नहीं थी। वेरी सिमिलर इज ऑन ट्विटर। ट्विटर पे भी आपने उसके फॉलोअर्स को इंक्रीज करने से लेकर एक अच्छी प्रोफाइल कैसी होती है। ट्विटर इज नॉट फॉर द बिजनेस पर्पसेस, वहां से आपको बिजनेस जनरेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग 50k फॉलोवर या 40k फॉलोवर या 1 lakh फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम एंड यू आर डूइंग योर बिजनेस थ्रू दैट, देन इट मीन्स कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू जब कोई पोस्ट करेंगे तो उसको बहुत सारे लोग देखेंगे, और जब आपका अकाउंट एक्टिव होगा, बेसिकली उसकी एसईओ आपने की होगी, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे और आपकी चीजें सेल हो रही होंगी। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन ब्रांड ओपन कीजिए, वो फूड पैंडा हो या कुछ भी हो, वो इंस्टाग्राम के थ्रू काम कर रहे होते हैं बेसिकली, और वहीं से वो क्लाइंट्स ले लेते हैं। तो अगर आपके पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ट्विटर आपके बिजनेस के लिए नहीं है, लेकिन फॉर योर पर्सनल यूज एंड फॉर योर पर्सनल ब्रांडिंग और फॉर पॉलिटिकल यूज उसके लिए है। लेकिन आप फाइवर पे इसकी सर्विस दे सकते हो कि आप कैसे कॉर्पोरेट या फिर पब्लिक फिगर का एक पेज कैसे इंस्टाग्राम पे बनेगा या सॉरी ट्विटर पे बनेगा, उसकी पेड और ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे होगी। इसके बाद आती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आप में से हर बंदा चाहता है कि मेरा यूट्यूब चैनल हो, मैं रात को यूट्यूब चैनल बनाऊं और सुबह उसके 10,000 फॉलोवर या फिर 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, मैं सबको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं और वीडियो बना के शेयर करूं, और जब मेरा चैनल मोनेटाइज होए तो बस 2-3 दिन में फौरन जो है वो डॉलर आना शुरू हो जाए, बिकॉज हम चाहते ही हैं कि हमारे पास जल्दी से जल्दी डॉलर आए। तो ऐसा अगर होगा तो बेसिकली उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यूट्यूब इज ऑल्सो हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आपने प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि यूट्यूब का चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्यों क्रिएट करना है, व्हाट इज माय कंटेंट, मैंने क्यों चैनल बनाना है। मुझे बहुत दफा मेरे स्टूडेंट्स इवन इस पे काम कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स आते हैं जो मोर देन 50k अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से, बट दे आर हैविंग 2 years प्लस स्ट्रगल, 2 साल से ज्यादा मेहनत। मेरा अपना छोटा भाई एक्चुअली ही इज ऑलमोस्ट 13 year old, 13 साल का है वो, लेकिन वो अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहा है और उसका बस ये है कि वो पबजी से रिलेटेड वीडियोस डालता है, दैट्स इट, कि वो पबजी खेल रहा है और उसने कोई नया उसमें टूल बाय किया है या कोई नई एक्टिविटी की है तो उसकी वीडियो वो अपने चैनल पे डाल देगा और उस पर व्यूज आएंगे। उसका चैनल बेसिकली काफी एक्टिव है, ही नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एज वेल। तो उसको सिखाया मैंने सारा कुछ। एट द एज ऑफ 13 ही इज डूइंग दिस थिंग। तो इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं है, आप यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर कंटेंट कि आपका कंटेंट क्या होगा, लोग आपको क्यों देखेंगे, तो फिर आपके लिए ये भी सर्वाइव करना, यूट्यूब चैनल पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट योर कंटेंट, आफ्टर दैट यू शुड नो अबाउट हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल चैनल। उसमें अपने सोशल मीडिया को कैसे कनेक्ट करना है और उसको प्रो कैसे करना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, सो ऑन ऑल दीज थिंग्स, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रो करना है। स्टार्ट में आपके 10 सब्सक्राइबर होंगे। मैंने अपने हाथों से डिफरेंट चैनल मोनेटाइज किए हैं जहां जहां पे मेरे प्रोजेक्ट थे, तो मैंने किए हैं बहुत सारे अपने हाथों से। अपना चैनल नहीं बना सका बेसिकली, आई वाज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन यूट्यूब, आई वाज नॉट हैविंग टाइम एज वेल। अदरवाइज मैं ये सारी चीजें अगर उधर सिखा रहा होता तो शायद मैं भी यूट्यूब से अर्निंग कर रहा होता, बट आई वाज हैविंग नो इंटरेस्ट इन दिस and I'm planning कि in future मैं ये कर सकूं, but right now I'm not having any time for that। वेब चैनल आपका कैसे प्रोफेशनल क्रिएट होगा, कैसे वेबसाइट होगा, और फिर उसके बाद आपकी पूरी स्ट्रैटेजी कि आपने डेली उस पर किस चीज की वीडियो अपलोड करनी है और लोगों को एक रीजन देनी है कि वो क्यों देखें। उसका थंबनेल कैसा होना चाहिए, उसकी वीडियो की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लोग उसको क्यों देखें। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखा होगा आप लोगों ने जो ट्रेंडिंग में चीज जा रही होती है, जब आप उसके बारे में वीडियो बनाते हो और किसी ऐसे तरीके से बनाते हो तो वो लोग उसको ज्यादा देखते हैं। जैसे कि कासिम अली शाह फाउंडेशन, आई हैव वर्कड ओवर देयर, काम किया मैंने वहां पे और बहुत कुछ सीखा भी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहा। तो वहां पे यूट्यूब की पूरी एक टीम है जो उस पर काम करती है यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल ऑफ सर कासिम अली शाह एंड कासिम अली शाह फाउंडेशन, और इसी तरह अलॉट ऑफ अदर यूट्यूब चैनल्स जिन पे काम होता है, उनकी पूरी टीम होती है जो उस पे काम करती है। तो बेसिकली वो सारी एक प्लानिंग की जाती है कि एक वीडियो अपलोड होने लगी है तो उसका थंबनेल क्या होगा। अगर आप इस तरह से वीडियो बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू
tell your audience about content writing. Content writing क्या है? If you are having a thumbnail about a content writing workshop, people will not be interested in your content, and they will never join you, they will never watch your video or share your video. But if you are having a thumbnail जिस पे लिखा हुआ है कि कंटेंट राइटिंग से आप अपने घर बैठ के कैसे पैसा कमा सकते हैं, इस वीडियो में ये जानिए। अगर इस तरह का कंटेंट आपने, इस तरह का थंबनेल आपने बनाया हुआ होगा, तो बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। या फिर आप ये इस तरह का कंटेंट बनाएं कि अपनी जिंदगी के वो राज आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किए, अबाउट कंटेंट राइटिंग, अबाउट माय प्रोफेशन एंड सो ऑन, एनीथिंग एल्स, इस तरह की कोई चीज। तो एट दैट टाइम you will have a lot of views and you will be having a lot of audience. This is the basic step. So rather than that, you should know about YouTube marketing. Paid marketing कैसे होती है और organic marketing कैसे होती है। Paid marketing आपने देखी होगी, बेसिकली आपके पास एड्स आ रही होती हैं अक्सर YouTube पे, तो वो ऐसी एड होती है जो आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपके सामने अगर कोई ऐसी एड आ जाए, ठीक है, आपके पास अगर एक ऐसी एड आ जाए जो आप स्किप भी नहीं कर सकते और आपने देखा और आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, एक बंदा आपके सामने आया, उसने आके कहा कि कंटेंट राइटिंग से आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए। अब इतनी बात आप सुनेंगे तो आप उसकी तरफ मगन हो जाएंगे। इट मीन्स कि इस तरह की एड को जब आप सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे, तब आप अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी एड जो आपके पास आ रही होती हैं, कभी आप स्किप कर पा रहे होते हैं, कभी नहीं, ये सारी एड्स बेसिकली आपके यूट्यूब की प्रमोशन के लिए होती है। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर स्ट्रैटेजीज जो आपको यूज करनी होती है ड्यूरिंग योर यूट्यूब मार्केटिंग, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। अ लॉट ऑफ अदर पेड टूल्स एंड ऑर्गेनिक टूल्स जो आप यूज करते हैं, अगर आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, यू कैन मोनिटाइज योर चैनल इन जस्ट 1 to 1.5 मंथ और 2 मंथ मैक्सिमम। 2 महीनों में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर ये सारी स्ट्रैटेजी यूट्यूब एड्स आपने सीख ली है, पेड प्रमोशन सीख लिया है, तो आपका यूट्यूब चैनल 2 मंथ में मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन दिन रात आपको एक करना होगा। इट्स रियली नॉट लाइक दैट कि आप रात को चैनल बनाओगे और सुबह आपके घर डॉलर पहुंचना शुरू हो जाएंगे कि वेरी गुड, आपने चैनल क्रिएट कर लिया है, तो हम तो आपका ही बस वेट कर रहे थे कि आपकी वीडियो आए और हम उससे लर्न करना स्टार्ट करें। तो ऐसा नहीं होगा, सॉरी टू से। यूट्यूब मार्केटिंग का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप अपना चैनल नहीं बनाना चाहते, तो किसी क्लाइंट का जब आप यूट्यूब चैनल बना के उसको मोनेटाइज करेंगे, कम से कम उससे 30,000 या 40,000 लगेंगे, ठीक है। एंड यू विल बी अर्निंग अलॉट फ्रॉम इट, राइट, यू विल बी अर्निंग फ्रॉम इट। उससे आप पैसा कमा रहे होंगे, ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि 40,000 आपका इन्वेस्ट नहीं हो रहा होगा, राइट। तो YouTube की मार्केटिंग आपकी प्रोडक्ट्स के लिए भी होती है। अगर आपने अपने YouTube चैनल को प्रमोट नहीं करना, तो आपकी स्नैक वीडियो अगर आपकी प्रोडक्ट है, तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं कि आप उसको इतना प्रमोट कर दें कि फिर आप जब भी YouTube ओपन करें या कोई भी YouTube ओपन करे, तो आपके सामने बस स्नैक वीडियो ही आएगी। देखा होगा आप में से किस किसने देखी है स्नैक वीडियो की वो एडवर्टाइजमेंट जो कहीं कहीं चल रही थी? मैंने। और किसी ने देखी है? Me too. यस। तो आप लोग भी इरिटेट हो रहे होंगे, जहाँ पे सब लोग इरिटेट हो रहे थे। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो वो एड्स भी आपको बेसिकली बेनिफिट दे रही होती है, ठीक है। जब आप अपनी प्रोडक्ट का एड चलाएंगे, फॉर एग्जांपल लवेजा है, उसका क्लॉथिंग ब्रांड है, और वो प्रोडक्ट चलाती है कि एक प्रोडक्ट बाय करें और एक आपको फ्री मिलेगी, और जितनी कॉस्ट दोनों प्रोडक्ट की है वो उतनी वो एक ही रख देगी। तो अगर ये एड वो वहां पे लगा दे, तो शी विल बी गेटिंग पोटेंशियल क्लाइंट्स फ्रॉम यूट्यूब एड्स एंड सो, ठीक है जी। तो अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट हम अगर देखें तो आपके पास आता है लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन जो है बेसिकली
जी, तो लिंक्डइन जो है वो कॉर्पोरेट लोगों के लिए। लिंक्डइन पे बेसिकली आपको सारे सीईओज मिलेंगे, मैनेजर्स मिलेंगे एंड दीस टाइप ऑफ पीपल, ठीक है? इस तरह के लोग आपको मिलेंगे लिंक्डइन पे, ठीक है? तो लिंक्डइन पे आपका बिजनेस का अकाउंट होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? और इस तरह के आपका जो अकाउंट्स हैं वो लिंक्डइन पे होने बड़े ज़रूरी हैं कि आप अपने बिजनेस का पेज आपका लिंक्डइन पे मौजूद हो, ठीक है? आपका बिजनेस पेज लिंक्डइन पे मौजूद हो और आपका अपना अकाउंट लिंक्डइन पे मौजूद हो। लिंक्डइन पे बेसिकली आपको सारे कॉर्पोरेट लोग मिलेंगे। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दी और आपने लिंक्डइन पे इसको पोस्ट किया, इसका मतलब ये है कि जितने लोग आपकी सर्विस को देखेंगे, वो सारे या तो किसी कंपनी के मैनेजर होंगे या किसी कंपनी के सीईओ होंगे, ठीक है? तो आपको लिंक्डइन को मस्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है? वहाँ से आपको बेसिकली जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। बेसिकली तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज आपको सोशल मीडिया से मिलती है। मैं खुद आप में से जितने लोग मेरे साथ फेसबुक पे स्पेसिफिकली फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे ऐड हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर मैं जॉब से रिलेटेड जो है वो शेयर करता रहता हूँ चीजें, जॉब जॉब से रिलेटेड या अपॉर्चुनिटीज जो है वो डिफरेंट मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है जी? तो फेसबुक पे और जो लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं है उनसे भी आई रिक्वेस्ट कि मेरे साथ फेसबुक पे मस्ट कनेक्ट हो जाइए। एम खुरम इरशाद इज माय फेसबुक अकाउंट। फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्ट होइए ताकि आप मेरे साथ इस तरह की एक्टिविटीज में अपकमिंग डेज में इंगेज रहे। तो इट वाज ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे आपको ये सब सीखना है कि आपने पेड प्रमोशन कैसे करनी है, ऑर्गेनिकली प्रमोशन कैसे करनी है, अपने कनेक्शन को इंक्रीज कैसे करना है और अपने पेज के फॉलोअर्स को कैसे इंक्रीज करना है। लेकिन लिंक्डइन इज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली प्लेटफॉर्म है। वहां पे एक दिन की एक ऐड $50 से कम नहीं लगती, $50 से कम एक दिन की ऐड। So if you are going to run your ad for the 7 days, तो you can count कि कितने डॉलर आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि वहां पे आपका एड देखेंगे ही सीईओ। डेफिनेटली दे विल बी मोर इंटरेस्टिंग इन बाइंग एंड सो ऑन। गूगल एड्स, ये जितनी भी एड्स आपके पास आ रही होती हैं वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे, वो जो स्किप नहीं हो सकती होती, और एसईओ के लिए जो आपका चैनल टॉप पे आ जाता है, बेसिकली उसके लिए सबसे जो मेजर टूल यूज होता है वो गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर आपका फेसबुक पेज है या आपका इंस्टाग्राम है, तो बेसिकली आप उसको जो है वो कैसे बेसिकली आप उसको कैसे रैंक कर सकते हैं एंड सो ऑन, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट दैट। अच्छा, तो ये चीजें जो है वो ये चीजें आपके साथ जो है वो डिस्कस करने का पर्पज ये कि आप ये चीजें कंफर्म सीख लें, ठीक है? आपका गूगल एडसन, गूगल एडवर्ड, गूगल एनालिटिक्स एंड सो ऑन, ऑल दीज थिंग्स, द प्रोडक्ट्स ऑफ गूगल, राइट? वो आप सब सीखें। तो ये चीजें जब आप सीखेंगे तो देन आफ्टर दैट जो है वो यू विल बी लर्निंग, यू विल बी अर्निंग थ्रू योर स्किल्स इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, उसके बाद जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो भी आप इसी तरह से सीख रहे होंगे। तो ये सारे वो स्किल्स हैं जो आपको कंफर्म आपको सीखने चाहिए। इफेक्टिव कंटेंट क्रिएशन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट कि आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग की सारे स्किल्स सीखने के बाद आपने पैसा कैसे कमाना, हाउ टू अर्न मनी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, दे आर हैविंग स्किल्स, उनके पास स्किल्स भी होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्लाइंट्स कहाँ से लेके आने, हाउ टू कम्युनिकेट टू योर क्लाइंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई विल नॉट बी रिस्पॉन्डिंग योर टेक्स्ट इन चैट बॉक्स इन जूम, यू आर सपोज टू आस्क इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, then you are supposed to ask at the end of the session, ठीक है? तो अच्छा जी, so we are going to just we are having just few concepts, उसके बाद हम इसको क्लोज करें। मेरे ख्याल से आप लोग थक चुके हैं, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर वो स्टूडेंट जिसके अंदर पैशन है
वो एटलीस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठ सकता है और सुन सकता है उन चीजों को जो आपको फायदा देने वाली हैं, वो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप दिस इज द रिसर्च ऑफ 4 इयर्स, जो 5 to 4 इयर्स जो मैंने रिसर्च की, और ये आउटलाइन आपको लाहौर के या किसी भी जगह किसी भी इंस्टीट्यूट में एज सच नजर नहीं आएगी। उनके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं या फिर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीटली नहीं होते, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ मैं एसोसिएट रह चुका हूँ या देख चुका हूँ। तो मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ कि आप लोग थक चुके हैं। इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक देन आई एम गोइंग टू क्लोज इट राइट नाउ, so we will recontinue it somehow tomorrow, but still I need 15 to 20 minutes to complete it. So just let me know. I'm just saying कि अगर आप लोग थक चुके हैं, मजीद नहीं सुन पा रहे हैं, so we can continue it tomorrow. Okay. Wrap it today. Right. We are having just few points to discuss. बस ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पैसा कैसे कमाना है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जो कि अक्सर प्रॉब्लम ये होती है, स्टूडेंट्स को सिखा भी दिया जाता है और उनके पास स्किल्स भी होते हैं। इंस्टीट्यूट उनको ये बेसिकली नहीं सिखाता कि आपने जो है वो व्हाट आर द प्रोफेशन आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग। तो व्हाट आर द प्रोफेशन आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आज भी 1-2 लोगों की, बच्चों की टीम की मुझे पर्सनली कॉल आई थी इसी ग्रुप में से, उनके साथ में डिटेल में डिस्कशन भी हुई थी। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग इज जस्ट दैट कि आपने फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया, उस पे अपनी गिग डाल दी, जो भी गिग डाल दी, और आपको ऑर्डर आने शुरू होते हैं। फॉर रात गिग बनाई है तो सुबह ही ऑर्डर आ जाएगा, और ऑर्डर भी आप बेशक वो आप जो सर्विस आप दे रहे हैं वो पहले से 1 लाख बंदा उसकी सर्विस दे रहा है, लेकिन आपको ऑर्डर जरूर आ जाएगा क्योंकि आपने इतनी जहमत कर ली है कि आप फाइवर पे आ गए। दिस इज कॉल्ड फ्रीलांसर, जो हम सुनते हैं या जो हमारा माइंड है, बट एक्चुअली इन रियलिटी व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल you should have grip on one skill, whatever it should be: graphic designing, digital marketing, content writing. You should be professional of one skill, not more than one. अगर आप, मैंने आज तक अपने नाम के साथ वेबसाइट डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर या फिर फिल्म मेकर नहीं लगाया, ऑल्दो आई एम सर्टिफाइड इन फिल्म मेकिंग फ्रॉम NCA, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। I'm also certified in ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डिजाइनिंग। मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे आता है, सारे स्किल मुझे आते हैं, मैंने सीखा। बिकॉज अगर मैं ये ना सीख पाता तो मैं अपनी टीम को गाइड ना कर पाता कि इसको करेंगे कैसे। कंटेंट राइटिंग भी जानता हूँ, लेकिन मैं अपने नाम के साथ कभी नहीं लगाऊंगा। अगर मैं अपवर्क पे अपने नाम के साथ ये सारी चीजें लगा दूंगा, या अपनी सीवी में सारी चीजें मेंशन कर दूंगा, या अपने बिजनेस में सारी चीजें अपनी कॉर्पोरेट प्रोफाइल में लगा दूंगा, तो लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमेशा लोग उस डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे जो आई स्पेशलिस्ट है, उसके पास नहीं जाना चाहेंगे जो आई स्पेशलिस्ट भी है, डेंटल स्पेशलिस्ट भी है, बोन स्पेशलिस्ट भी है, एंड सो ऑन अ लॉट ऑफ अदर कैटेगरी। बी अ स्पेशलाइज्ड पर्सन एक फील्ड में, जिसके आप स्पेशलाइज हो। 0 से स्टार्ट करो, साल लगेंगे, दिन लगेंगे, महीने लगेंगे, लेकिन वन डे यू विल बिकम अ प्रोफेशनल कि लोग खुद आपके पास आएंगे। फ्रीलांसिंग, एक स्किल में प्रोफेशनल होना है, ग्रिप करनी है, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांगली पोर्टफोलियो बनाना है, क्लाइंट्स के साथ काम करके फ्री काम करो, ठीक है। और सिंपल इज दैट। अगर स्ट्रगल नहीं कर सकते तो प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, कोई दूसरा काम कर लो, कोई बिजनेस कर लो। इवन इफ अगर आप कोई छोटा सा सेटअप भी रन करते हो, कोई छोटी सी शॉप, कोई छोटी सी, इवन आई एम नॉट गोइंग टू से दैट टाइप ऑफ वर्ड, लेकिन अगर एक छोटी सी शॉप भी आप ओपन करते हो, यू विल बी अर्निंग इन 1 मंथ। एक दिन में 1000 रुपए कमाते हो, तो एक महीने में एक महीने में आप 30,000 रुपए कमाओगे। कब तक आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेते रहोगे, और कब तक आप अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेंगे कि मैं, हमने यूनिवर्सिटी जाना है तो हमें पैसे दे दें, या हमने अपनी फी पे करनी है तो हमें पैसे दे दें? कब तक? यू जस्ट हैव टू लर्न द स्किल्स कि कैसे पैसा कमाना है। फ्रीलांसिंग करनी है तो दिन रात एक करो, और दिन रात अगर एक कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे ला के दिखाओ, मैं देखता हूँ कैसे उस पर ऑर्डर नहीं आता। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं।
मेरे स्टूडेंट्स जो एक्टम कॉलेज में मुबीन एक लड़का, अगर वो यहाँ पे मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा आई डोंट नो, लेकिन यू कैन चेक हिज फाइवर अकाउंट। उसने सिर्फ और सिर्फ 1 महीना पहले क्रिएट किया था और पहला ऑर्डर $50 का आया, $50 का। बट ही वाज प्रोवाइडिंग यूनिक सर्विसेज, नॉट ऑल अबाउट दैट जैसे सारी दुनिया कर रही है कि यार लोगो डिजाइनिंग सर्विस अवेलेबल, कंटेंट राइटिंग सर्विस अवेलेबल, या फिर पोस्टर डिजाइनिंग सर्विस अवेलेबल। भाई जो सर्विस लाखों लोग दे रहे हैं वही अगर तुम भी दोगे, इफ यू आर आल्सो गोइंग टू प्रोवाइड दैट सर्विस जो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो क्यों क्लाइंट आपके पास आएंगे? ट्राई टू बी यूनिक पर्सन, ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम यूनिक गिग। ओके, हाँ, फ्रीलांसिंग के लिए आई सजेस्ट चूज डिजिटल मार्केटिंग। जस्ट गो टू फाइवर एंड सर्च अबाउट इट। अपवर्क पे जाओ, सर्च करो, पीपल पर आवर पे जाओ, सर्च करो, गुरु पे जाओ, सर्च करो, freelancing.com पे जाओ, सर्च करो। पहले ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग सर्च करो, उसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल डेवलपमेंट, ये लफ्ज लिखो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग लिखो, उसकी गिग सर्च करो। चेक आउट द डिफरेंस, यू विल फाइंड मेजर डिफरेंस। इंस्टाग्राम मार्केटिंग की सिर्फ फ्यू गिग्स मिलेंगी, कोई 20-30 या 100, बस मैक्सिमम 50 नहीं होंगी कंफर्म। मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था, तब को 25 थी मेरे ख्याल से, 20-25। तो 20-25 में अगर यूनिक बन के जाओगे, यू विल बी हैविंग मोर चांसेस टू गेट एन ऑर्डर। और अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाओगे, यू शुड बी यूनिक। ट्राई टू इफ यू आर एनी हाउ, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है और वो फाइवर पे काम कर रहा है, मैं बताता हूँ आपको सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज देनी है। ट्राई टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ portraits, art portraits, digital art portraits, and try to provide the services of try to create the gigs about retouching। और most unique service जो मैंने आज भी डिस्कस किया था खुद लोगों के साथ, हाई रेजोल्यूशन फ्रीक्वेंसी पोर्ट्रेट्स, हाई फ्रीक्वेंसी टेक्स्ट पोर्ट्रेट्स। ये पोर्ट्रेट्स की सर्विस दो जो कोई नहीं दे रहा, यूनिक है। हाँ, एक डिजाइन क्रिएट करने के लिए 2-2 दिन लगेंगे, लेकिन ये वो चीज है जो कोई नहीं दे रहा। और आपका एक ऑर्डर, और वो मेरा स्टूडेंट भी इसी कैटेगरी में जा रहा था, इसी तरह की सर्विसेज दे रहा था, एक ऑर्डर पे आपको $50 मिलेंगे। अपनी गिग को हाई रैंकिंग पे लेके जाने के लिए उसकी प्राइस भी हाई रखो, लेकिन आपकी सर्विस के साथ साथ आपकी सर्विस यूनिक भी होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग, चूज योर बेस्ट ऑप्शन। वो बेस्ट आपका जो है वो आपका वो बेस्ट स्किल होना चाहिए जो आप दें। डिजिटल मार्केटिंग में आप गूगल एड की अलग सर्विस दे सकते हो, एसईओ की अलग दे सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की अलग दे सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर करूंगा। जस्ट स्टे इन द ग्रुप, जो आपका ग्रुप बना हुआ है इस आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के लिए जो ग्रुप बना है, और एक और भी अभी बनाया है, तो उस ग्रुप में उसी ग्रुप में आप रहें, उसको लेफ्ट नहीं करना। वहां पे आप सारी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता रहूंगा। आपकी क्वेश्चन हो वहां पे मेरे से पूछें, एंड यू आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग टू मी फॉर दिस सर्विसेज के मैं आपको ग्रुप में ये सारी चीजें बता रहा हूँ, तो इसके लिए आप मुझे कोई पैसे पे नहीं करेंगे, या मेरे साथ आके अगर कंसल्ट करेंगे तो मैं आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा। इन फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर सर्विस आपके पास अलग अलग गिग है। गूगल एड्स, फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, एसईओ, इवन सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड सो ऑन। ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम यूनिक स्किल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सारी सीखनी है, इंस्टाग्राम और फेसबुक को मिला के एक गिग बना दे कि दोनों की मैनेजमेंट एंड सो ऑन। So first you can do freelancing. Just learn the tactics of freelancing correctly. Just learn from your seniors who are doing this and so on. After that you can start your own business. Simple as that. अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो आपका आप करना चाहते हैं, नया स्टार्ट करना चाहते हैं, यू आर हैविंग सम सर्विसेज एट योर होम। फॉर एग्जांपल, कोई है वो कहता है मेरा पोल्ट्री फार्म है मेरे बाबा का, और वहां पे अंडे वगैरह होते हैं, तो वो क्योंकि फिजिकली बेचना मैं चाहता हूँ ऑनलाइन बेचूं। यू कैन स्टार्ट इट जस्ट लाइक ग्रोसर ऐप आपने देखा होगा आजकल चल रही है, बहुत सारी ऐसी और सर्विसेज चल रही है जो ऑनलाइन काम कर रही है। वो आप खुद से 0 पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर की मौजूद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विसेज को लेके। तो बिजनेस स्टार्टअप जो है, इस पे स्पेशली हम एक वर्कशॉप रखेंगे, उसमें ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हो विच यू ऑलरेडी हैव। रादर देन दैट यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। आइदर आप एक डॉक्टर हो तो अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज
आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो तो अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करते हुए अपना सोशल मीडिया से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कि सोशल मीडिया के थ्रू हम कैसे करेंगे। यू आर नॉट हैविंग एनी क्लिनिक, एनी ऑफिस, एनीथिंग एल्स, आप एक साइकोलॉजिस्ट हो या फिर एनीथिंग एल्स, you can start your business from your home by creating your pages and by doing digital marketing stuff. Rather than that, ये skills अगर आपने सीख लिए हैं, आप इन तमाम skills की services दे सकते हो, just like my company providing services of digital marketing, SEO, graphic design and so on. So I have no issue कि आप मेरे competent बन जाओगे। मेरे अपने कई स्टूडेंट वो भी मेरे ही कंपिटेंट बने और उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मुझसे सीखा है उन्होंने और वो कामयाब हैं, दे आर अर्निंग समथिंग, दैट्स इट। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कामयाब ना हो सका, जिसने कुछ सीखा ना हो, जो अर्न ना कर रहा हो। तो दैट्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी कि वो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग समथिंग। ओके, सो आफ्टर दैट बिजनेस आप अपना कर सकते हो, उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग आपको सपोर्ट करेगा। Job in well-reputed company. Please make yourself clear in this. If you want to be a job holder, just forget about business startup and freelancing. और अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो जॉब को भूल जाएं। स्टार्ट में हर चीज जीरो से ही स्टार्ट होगी। जॉब अगर स्टार्ट करेंगे तो इंटर्नशिप से स्टार्ट होगी। स्टार्ट में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आप सीखोगे बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस में कैसे काम होता है, कंपनी कैसे चलती है और उस कंपनी में जो है वो काम कैसे होता है, प्रोफेशनल होके कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन बना जाता है कि आप रिजल्ट दें कंपनी को। और स्टार्ट में आपकी सैलरी कम होगी, इंटर्नशिप में आपको कुछ भी पे नहीं किया जाएगा, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल बी अ प्रोफेशनल। उस वक्त आपकी सैलरी होगी, उस वक्त यू विल बी अर्निंग मोर देन 40,000। आज भी वो मेरी एक क्लोज फ्रेंड जीनिया, उसने ग्रुप में शेयर किया हुआ था, वो मैं अपॉर्चुनिटी आप सबके साथ शेयर करूंगा। अगर आप में से कोई पैशनेट है ग्राफिक डिजाइनिंग को लेके, तो सॉरी डिजिटल मार्केटिंग को लेके ऑलरेडी, इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग सम स्किल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सैलरी वाज 40,000, 14,000, 40,000। एक ऐसी जॉब जो 9 to 5 है, सैलरी वाज 40,000 एंड एक्सपीरियंस वाज रिक्वायर्ड जस्ट 1 ईयर। वो इंटर्नशिप का हो या कैसा भी हो, 1 ईयर एक्सपीरियंस वाज रिक्वायर्ड। और हर डिजिटल मार्केटिंग की जॉब आपको 50,000 के राउंड अबाउट ही पे बैक करेगी। हाँ, अगर आप कामयाब हो गए कोई इंटरनेशनल ब्रांड ढूंढने के लिए जो आप अपने घर बैठ के काम कर रहे हैं, यू विल मूव टू ग्लोबल कम्युनिटी। तो मैं खुद क्योंकि पाकिस्तान लोकल कम्युनिटी में डील ही नहीं करता, क्योंकि वो पैसे ही नहीं देते, उनको लगता है कि हम हर चीज फ्री में ही कर लेंगे। बीइंग अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, जस्ट clear yourself in one thing. First of all, you have to invest. You have to invest your money in learning these skills. You should have a mentor जो आपको हर जगह पे गाइड करे। You should have a certification, proper certification. जो जाके कंपनी को दिखा सको कि मैं सर्टिफाइड हूँ इस चीज में, मैं इस इंस्टीट्यूट से, मेरे पास सर्टिफिकेट मिला, किसी भी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद you have to invest your time. मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर देखे हैं, क्यों कामयाब नहीं होते? First of all, they are not up to paying anything. वो कहते हैं 1 रुपया भी नहीं पे करना और सब सीख के लाखों कमाना शुरू कर देना। तो जब तक अपनी जेब से इन्वेस्ट नहीं करोगे 1,000, 2,000, 500 जितना भी, तब तक आपको इस चीज का एहसास नहीं होगा कि हमने इसको सीखना है। और आफ्टर दैट जब तक आप टाइम नहीं दोगे, मैक्सिमम टाइम नहीं दोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। और आप दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करोगे, तब भी आप कामयाब नहीं हो सकोगे। जब तक आप अपने स्किल्स के साथ मोहब्बत नहीं करोगे, मोहब्बत आप अपने स्किल्स के साथ करेंगे, अपने स्किल्स के साथ प्यार करेंगे और अपने सर्विसेज के साथ। एक क्लाइंट आपको काम दे रहा है, दिन रात उस पर मेहनत कीजिए, वो खुश भी होगा, आपको मजीद काम भी देगा, फिर आप कामयाब हो सकेंगे। ये सारी चीजें ट्राई टू सिट ऑन योर कम्युनिटी, फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी में बैठे। मैं जब भी फेसबुक ओपन करता हूँ 3-4 वहां पे पोस्टें आई होती हैं कि ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड या डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड। लोगों को अगर इतना कुछ चाहिए तो उनको मिल क्यों नहीं रहा, और फिर आप लोग फ्री क्यों बैठे? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपने सीखा ही नहीं था कि क्लाइंट्स के पास कैसे जाना है, खुद उनके पास कैसे जाना है, कहाँ से मिलेंगे,
किस जगह से मिलेंगे, उनको टैकल कैसे करना है और उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है, विच इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मस्ट सिखाता हूँ, हाउ टू कम्युनिकेट योर क्लाइंट। ये अगर आपको नहीं ना आता तो आई एम सॉरी, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। एक दो साल लगेंगे प्रोफेशनल बनने में। तो ये अगर आपने सीख लिया तो बहुत कम टाइम में आप अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन माय प्रीवियस कैरियर आज तक कोई एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो चला गया हो ये कह के कि सॉरी खुरम, मैंने आपकी सर्विसेज नहीं लेनी। मैंने टारगेट ही उनको किया जिनको उसकी सर्विस रिक्वायर्ड थी, और मैंने उनको वो चीजें हमेशा बताई। मेरी टीम के लोग बड़ा अच्छा जानते हैं, मैं उनकी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ इस चीज में कि वो खुद, अब वो क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, मैं खुद नहीं करता, कि वो भी सीखें कि वो कैसे क्लाइंट्स के साथ डील करना है। अपने स्टूडेंट्स को इस चीज में मैं डील करता हूँ, उनको अपने साथ मीटिंग्स में लेके जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नॉट इवन अ सिंगल क्लाइंट जो आज तक ये कह के गया हो कि खुरम सॉरी, सॉरी मैंने आपसे सर्विस नहीं लेनी, कोई एक भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा जाके उनको ये बताया कि आपका बिजनेस ये है और उसमें ये प्रॉब्लम मौजूद है, और मैं ये करूंगा तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, तो लेट्स हैव अ ट्रायल, दैट्स इट। उनको क्या प्रॉब्लम होगी जब आप उनको ट्रायल देंगे एक दिन का? तो भाई एक फेसबुक पेज जो 10 सालों से 500 लाइक इंक्रीज कर सका है, आप एक दिन में 1000 इंक्रीज कर दोगे तो डेफिनेटली वो आपको प्रोजेक्ट देगा कि यार ठीक है 2 लाख रुपया मैं देता हूँ, आप इसको 1 लाख लाइक तक लेके जाओ, इसकी ब्लू टिक वेरिफिकेशन करो। ये चीज मैंने स्किप कर दी कि आपको ब्लू टिक वेरिफिकेशन भी करनी आनी चाहिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब की। ठीक है, बिजनेसेस आपको हजारों पे करते हैं, 1000 पे करते हैं, 50,000, 60,000, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप उनका पेज ब्लू टिक वेरीफाई कर दो। और ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, वो सिर्फ एक स्किल है। तो एक वेल रिप्यूटेड कंपनी में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपने आप को शो ऑफ करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे अपना पोर्टफोलियो शो करना है, कैसे अपनी सीवी बनानी है और क्या शो करना है। आप सबने मेरे ये 4 अल्फाज सुने, इनको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कैसे इंटरव्यू देना है। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए, इंटरव्यू ग्राफिक डिजाइनिंग का होता है, आके मुझे बता रहे होते हैं कि सर मैं सोशल मीडिया भी जानता हूँ, मैं वेबसाइट भी जानता हूँ, फौरन मैं रिजेक्ट करता हूँ, सॉरी इसकी जरूरत ही नहीं है, जिन चीजों की क्यों बता रहे हैं। इट मीन्स कि अपनी लाइफ में यू आर नॉट डायरेक्टेड, एंड आई रियली हेट दिस कॉन्सेप्ट कि एक वो बंदा जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है उसको मैं बस गाइडलाइन दे सकता हूँ कि जाके इसको पहले कोप करो, इसको सीखो। आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, उसमें 15, 20 या 500 स्किल नहीं लिखा होना चाहिए। उसके बदले में बिल्कुल भी आपको कोई तमगा नहीं मिलने वाला कि आपकी सीवी में 500 स्किल है। यू शुड हैव 1 to 2 स्किल, और उस स्किल से रिलेटेड आपके 10-15 एक्सपीरियंस ऐड होने चाहिए मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, ब्रांड्स के साथ, बड़े ब्रांड्स के साथ, बड़े ब्रांड के नाम आपके साथ जुड़ने चाहिए। दैट्स इट। इंटरव्यू देना आना चाहिए भाई, हाउ टू स्पीक, क्या बताना है क्या नहीं बताना। ठीक है, अगर कंपनी वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि आज से 5 साल बाद आपको, आप खुद को कहाँ देखते हो, ये बात अपने पास नोट डाउन कर लीजिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आपसे वो पूछेंगे कि आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं तो आप कहेंगे कि सर मैं देखता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपनी कंपनी बना लूंगा। फौरन रिजेक्ट कर देंगे, फौरन। वो कहेंगे यार ये तो अपनी कंपनी बनाना चाहता है, ये हमारी कंपनी को क्या ग्रो करेगा। सो दैट्स इट्स ऑल अबाउट दैट। So I have done. Thank you so much. Thank you so much to all of you, and thank you so much to UMT team and all of you for conducting this session, and my team as well, my internship team, and all of you for joining today's session. Now, if you have queries regarding anything from start to end, regarding goal setting, regarding your career building, regarding your field, regarding digital marketing, regarding anything, you can ask me. I will be having a proper course for you. I will be having a proper course for you in which you will learn all these things. I will be having a different webinars and different sessions for you in which you will learn all these things. So just let me know if you have any query. Just let me know. Just turn on your mic and ask me if you have any query. किसी का कोई क्वेश्चन है?
अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर वी आर गोइंग टू क्लोज. Excuse me, sir, I have a question. आपका गुड नेम और आप क्या करती हैं? My name is Maham Javed, and basically I'm a software engineer. I have practiced that skill for a greater time, but now I want to continue it as my something that can carry my own. You know that for our females, it's sometimes difficult for us to continue jobs and all that. So I want to have something of my own and just have a skill, like you have said, a Which single will skill. pay back you at your home. That's it. Which will pay back you Exactly. at your home. For girls, And I have a exactly that. satisfaction that, and I have a satisfaction that I have, and I'm working with my degree, or I'm justifying my career. So I want some specific skill. Basically, I am doing a sort of social media marketing, but like you have said, that we need a detailed understanding of this skill. Like you have said, we can increase the followers, we can have a content management and all that. So I want to specifically learn about social media marketing, Facebook and Instagram, most probably. So can you please attach me to some group or some you can links where I can learn this social media marketing specifically? Okay. So you just want to learn social media marketing. Okay, that's Yes. clear. Are you in group? Just remind me once. Okay. Just I remind me am once. You all are having these. Yes, please, you can continue. I said you are having my contact number. Just remind me once. Okay, I will attach you somewhere when you done this. Okay, I do not have your contact number. I think someone have communicated with me, but I don't know it's specifically you or your any team member. I am in all the three Are groups. you in group member? Are you in group? Yes, I am. Are you in group? Yes, I am in all the three groups: the training group, the digital marketing group, and there's some another one. Okay. So you are having some previous workshops with me, goal setting workshop, graphic designing workshop, and so on, right? No. I do not have any workshop. This is my Okay, first one, this is and first one. yes, I'm really impressed by the way you have cleared up my mind, because I am so much navigating here and there, where to start and where to end and what skills are required for me, because I have a side business. Basically, it's not my own business, but I am doing the content management and digital marketing of that particular business. This is my somehow my family business. So I want to polish my skill from that. That is why I'm specifically concerned about Facebook and social media marketing. All right. I have shared my personal contact number in chat box. You should contact me. Okay. Just tonight, right after 12 p.m. Like I will be. If you will not be available after 12, because I have consecutive meeting after this session, like after 10. Sure, I understand. So, okay, just contact me over there. कोई Okay, क्वेश्चन thank है you. आपका या किसी और का कोई क्वेश्चन है? No, thank you so much. I Sir, मेरा एक just need. question है. I have a question. Yes. Nimra, please. So basically, if someone has created you can say tempting page of Facebook or Instagram, but Okay. still unable to gain more followers, so what's the reason? Like content management में भी कोई flaw नहीं है, और posting और के लिए जो details हैं products की, services की, वो भी detailed है, कोई ambiguity उसमें भी नहीं है, फिर भी लीड जनरेशन नहीं हो रही उस तरीके से कि जिस तरीके से मतलब खुद एक माइंड अप बनाया होता है कि इस तरह हो जाएगा तो माइट बी पेड ऐड लगा रहे हो आप? पेड ऐड लगा रहे हो आप? पेड ऐड भी लगाई थी। पेड ऐड लगा रहे हो? यस, उससे भी लीड क्या रिजल्ट जनरेशन मिला नहीं जब? हुई। कितने पैसे उससे भी कितने पैसे आपने जनरेट किए और उस पे इन्वेस्ट किए और कितना लीड आपने जनरेट किया? अच्छा, जो लीड जनरेशन वाली बात है ना, उसमें ये हुआ था कि पेड ऐड तो चली मेरी, लाइक आई इन्वेस्टेड अराउंड 2K, लेकिन उसमें जो है उस तरीके से
traffic आई, लेकिन traffic was just like they were limited to asking questions about the product, not converted into Yeah, sale. basically you have not done that detail targeting. You don't know about detail targeting, और आपका ad उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं जो उसके स्पेसिफिकली जिस कैटेगरी में वो फॉल कर रहे थे. फॉर एग्जांपल अगर आपने टूरिज्म का एड लगाया तो आपने उसको ऐसे लोगों को शो ही नहीं किया जो ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं. आपने उनको शो किया जो नॉर्मल मेरी तरह बस सब एड देख रहे होते हैं और उस पे बस ये कमेंट कर रहे होते हैं कि व्हाट इज दिस एंड टेल मी समथिंग अबाउट इट एंड सो ऑन. So it's not like that. This is why I'm just saying that I have listed down the skills which you have to learn. Okay. और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप एक रात में सीख लोगे. You have to invest almost 2 to 3 months. क्या कैसे लीड जनरेट होगी फेसबुक से, उस पर फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज होंगे. बेसिकली इंक्रीजिंग योर फॉलोअर्स इज अ स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी. एक एड लगाने से नहीं, पूरी स्ट्रैटेजी एक पेज पे बैठ के प्लान होती है. लेकिन आपके पेज के लाइक आई एम वेरी श्योर इन दिस, अभी पिछले दिनों ही मैंने वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक पेज बनाया. जिस दिन बनाया था अगले दिन उस पे 1000 लाइक्स थे अल्हम्दुलिल्लाह. और पिछले दिनों कुछ दिन पहले हमने अपने एक क्लाइंट के लिए पेज बनाया. तो मेरी टीम के लोग जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, मिस इकरा, मरियम और ये सब लोग जानते हैं, राबिया एज वेल, अरफा. तो वी वाज वर्किंग फॉर अ क्लाइंट जिसके पेज को हमने क्रिएट किया एंड इन जस्ट 1 वीक इट वाज हैविंग 80,000 लाइक्स, 80,000 लाइक, और ब्लू टिक वेरीफाई भी हुआ. एक्टिव पेज था, एक पोस्ट होती थी, तो लिंक शेयर करूंगा बाकी. तो एक पोस्ट होती है तो उस पे व्यूज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं विदाउट बूस्टिंग. तो बूस्ट किया जाता है तो मजीद रिजल्ट मिलता है. दिस इज द बेसिकली स्ट्रैटेजी. क्योंकि आप अगर अपने बिजनेस पे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, लेट्स सपोज सारे प्रोसेस पे 40,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपके बिजनेस पे से में से फिर 5 लाख रुपए निकल भी आएगा. ठीक है जी. ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी होगी. हमने 500 रुपए का एड लगाया, जस्ट 500. राबिया, आर यू लिसनिंग मी? आर यू हियर? शी वाज बेसिकली मैनेजिंग. राबिया, आर यू हियर? शी इज नॉट हियर आई थिंक. तो जस्ट 500 का हमने एड लगाया था और उसमें से हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिला था डे 1 पे. सारे हमें मैसेजेस भी आ रहे थे और आप में से मोस्टली लोग ग्रुप में फेसबुक के थ्रू ही आए हैं. हमने लीड जनरेट किया इन जस्ट 500 रुपीज. इट्स अ बेसिकली स्ट्रैटेजी. जब तक आप वो सारी नहीं समझेंगे, पेज के लाइक्स आप 2 साल में भी 10,000 नहीं कर सकेंगे. तो एनीवन जिसका कोई इससे हटके, इन चीजों से हटके कुछ स्पेसिफिकली कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैं बताऊं और आपको फायदा हो जाए. सर मुझे ये पूछना था कि हम फ्रीलांसर एज अ कंसल्टेंट को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि फ्रीलांस कंसल्टेंट क्या आप मुझे इस बारे में कोई आइडिया दे सकते हैं? फ्रीलांस कंसल्टेंट कौन होता है? मैंने आज तक ये लफ्ज नहीं, मैं बेसिकली सर्च ही कर रही थी, बिटवीन सिमिलैरिटीज देख रही थी कि आप फ्री मतलब फाइवर पे या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे एज ए कंसल्टेंट फ्रीलांसिंग या आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या एक्सेप्ट आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के अलावा, तो इसका किस यही चीज के मैं पूछ कंसल्टेंट? एज अ हाँ, नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट. कंसल्टेंट as a physiotherapist. So you can provide your services online. Also, you can provide your services through Fiverr as well, but you will not find much clients through it. What is the strategy? Just understand the strategy. Start your business from your home. Create your pages. Make them professional. Just learn to make your pages professional. Mention your services on your pages. Okay. Just do the SEO of your pages. Your pages should have 10K followers at least. Instagram as well and Facebook as well. Only 2 pages. Put daily basis content. Daily अपना content upload करो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड. अपने क्लाइंट्स के रिव्यू टेक्स्ट में है, व्हाट्सएप पे है. मेरी एक स्टूडेंट व्हाट्सएप पे रिव्यू आता है, उसको ऐसे ही पोस्ट कर देती है. बस ऐसे ही की जा रही है. 7,000 फॉलोवर है और वो बेसिकली न्यूट्रिशनल किए जा रही है. बस वो जो आता है उसके बाद बस वो कर देती है. यू जस्ट हैव टू लर्न दिस. आपके पास जो क्लाइंट का रिव्यू मैसेज में आता है, वॉइस मैसेज में आता है, उसकी स्क्रीन वीडियो लेके वहां पे लगा दो. आपके पास मैसेज में आता है, उसको वैसे लगा दो. कोशिश करो उससे बोलो वीडियो बनाए आपके बारे में कि मैंने फरहीन अशरफ से एक ट्रीटमेंट करवाया एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड, रिकमेंड करता हूं एंड सो ऑन. डेली अपना एक पोस्ट बनाओ जिस पे लिखो कि फिजियोथेरेपी सर्विस अवेलेबल, वी विल बी विजिटिंग यू और यू विल बी विजिटिंग अस एट आवर क्लिनिक एंड सो ऑन.
अपने पेज को बूस्ट करो, उस पे डेली बेस पे 500 रुपीज इन्वेस्ट करो। अगर आपको एक क्लाइंट 5 दिनों में मिल गया तो आपने 2500 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे और उस क्लाइंट से आपको 10-15 हजार रुपए निकाल लेना। तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रैटेजी, ऑल दैट। Is this clear now? Thank you so much. Yes. Yeah, this is the basically strategy. You have to invest first of all. Anyone else? किसी का कोई और क्वेश्चन है इस तरह का? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? Okay. I think कोई question नहीं है. And I want to ask something. There is a question कि अगर हम सब कुछ ये सीख लेते हैं फ्रीलांसिंग, हमें ये सब स्किल्स आ जाती हैं, इवन देन हम अर्न नहीं कर पाते हैं, तो व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दैट कि हम क्यों नहीं अर्निंग कर पाते? हाँ, फैक्टर इज जस्ट दैट कि हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे ट्रेनर ने हमें सिखा दिया कि आपने स्किल्स आपके पास हैं। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि पैसे कहाँ से लेके आने हैं, क्लाइंट कैसे कमाने हैं, क्लाइंट को कैसे डील करना है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आप क्लाइंट डील अरेंज कर सकते हो और आपकी स्पेसिफिकली आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट के क्लाइंट्स आपको ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे। फाइवर पे अगर आपने काम करना है तो फाइवर का पूरा एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी है, एक कोर्स है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर वो सारा 2-3 लेक्चर में सीनियर फ्रीलांसर्स को इनवाइट करके उनके साथ इंटरेक्ट करवा के वो वैसे क्लियर करवाता हूँ कि कैसे कमाएंगे। If someone having skill and not earning, simple is that he or she really don't know about the strategy of earning कि पैसा कैसे कमाना है। तो सीखा ही नहीं, इंस्टीट्यूट में उसको सिखाया ही नहीं कैसे। क्लियर है जी? जी ठीक है। और आप ये भी बताइएगा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनको कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग में उनका क्या रोल है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक पर्सन की कि उन्हें ये सब स्किल्स आने चाहिए? या हमारे पास यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये क्वेश्चंस जो रेज करना चाह रहे हैं कि बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम कैसे कर सकते हैं, क्या फायदे? तो क्या फायदा हो सकता है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहता हूँ कि हर बंदा, मेरा ये मानना है जो स्किल्स ऊपर मैंने मेंशन किए हैं, हर बंदे को ये सीखना जरूरी है, हर बंदे को ये सीखना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली और ग्राफिक डिजाइनिंग भी। क्यों? अब आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आप डॉक्टर हैं, कल को जाके आपका एक हॉस्पिटल बन जाएगा, ठीक है? और लेट्स सपोज उरूज का एक हॉस्पिटल बन गया और उरूज को ये नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो जिस एम्प्लॉय को आप रखेंगे ना वो आपको चकमा दे जाएगा बेसिकली। मेरी एक टीचर कहती थी कि मैंने जो फर्स्ट जॉब की, शी वाज माय बेस्ट टीचर एंड शी इज इन यूके राइट नाउ। आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर और अभी भी सीखता हूँ। राइट नाउ शी इज माय मेंटर एज वेल, तो डेली बेसिस पे भी सीखता हूँ। वो कहती थी एक दफा कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती थी, वेबसाइट बनानी आती थी, तो वी वाज वर्किंग कोलैबोरेटिवली एक सॉफ्टवेयर है उसमें। तो एक मेरा जो कुलीग था ना, वो जो ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, उसको मैंने कहा कि वेबसाइट में मैंने एक पोस्ट अपडेट करनी है, अभी तो मुझे पोस्ट डिजाइन करके दे दो। और उसने आगे से ये कहा कि मिस ये तो 3-4 दिनों में होगी, मैं तो इतना मतलब ये आसान नहीं है, इतना ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है जी, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो कहती मैंने अपने सोचा कि शायद ये बहुत मुश्किल काम है, एक छोटी सी पोस्ट बनाना जिसमें बस टेक्स्ट लिखना है, सो ऑन। तो शी सेड कि मैं फिर अपने घर आ गई और मैंने अपने भाई से डिस्कस किया कि भाई 2-3 दिनों से एक मसला नहीं मेरा हल हो रहा। तो बस वो स्टूडेंट मेरा कहता है कि जो मेरा लाइक कोलीग है वो कहता है मुश्किल ही बहुत है, और उसने मुझे बताया कि ये तो काम ही 2-3 मिनट का है, ये तो इजीली बन जाएगा। और आफ्टर दैट उसने मुझे वो सिखा दिया ये बनती कैसे बेसिकली। और जब मैंने सीख लिया उस वक्त इट वाज वेरी अमेजिंग कि मैंने जो है वो खुद जब सीख लिया तब वो मेरा कोलीग कभी भी मुझे झूठ नहीं बोलता था, मुझे पता था कैसे बना। ये रियलिटी बेस्ड चीज बता रहा हूँ। अगर आपको ये सारे स्किल नहीं आते और कल को आपने एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपके एम्प्लॉयज आपको चकमा देंगे, सिंपल इज दैट, इन सिंपल लैंग्वेज। और आप अच्छे से अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस को स्टैंड नहीं कर पाएंगे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी अपनी कंसल्टेंसी देनी होती है, उनको अपनी एक प्रोफाइल रखनी होती है। एक डॉक्टर है बंदा या एक इंजीनियर है, उसकी अपनी भी तो प्रोफाइल होनी चाहिए कि उसका डॉक्टर पेज हो कि ये बंदा ये डॉक्टर है और ये सर्विस दे रहा है, इस चीज की कंसल्टेंसी दे रहा है। ऑनलाइन कैसे लोग आपको अप्रोच करेंगे?
तो इवन अगर एक बंदा लॉयर है तो उसको भी ये सीखना चाहिए कि कल को वो अपना चैम्बर बनाएगा तो उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकेगा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसा स्किल है जिसके पास आपको सबसे पहले जाना पड़ता है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पेज बनाना होगा और लोगो बनाना होगा, जिसके लिए आप जाएंगे किसी एक एक्सपर्ट के पास, राइट? तो दिस इज बाय कि सब लोग गूगल से इधर उधर से वीडियोस देखकर सीख लेते हैं फ्रीलांसिंग करना, ये सब स्किल्स जो होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें हमें एक मेंटोर की नीड है या नहीं? मतलब मेंटोर की हमें नीड नीड है। है कि इफ mentor आई हो जो हमें अपनी प्रॉपर्टी बात करूं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर हमारे पास एक मेंटोर नहीं है तो हम फेसबुक ऐड गूगल से सीखेंगे या कहीं से कोर्स करके हम आ चुके हैं और मैं अपने मेंटोर के साथ कनेक्ट नहीं है, तो फेसबुक ऐड लगाएंगे और वो ऐड रिजेक्ट हो जाएगी, कभी ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, अ लॉट ऑफ इश्यूज हम फेस करेंगे और हमारी ऐड का रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे निम्रा ने कहा, रिजल्ट नहीं आएगा, हम 2000 रुपये लगा देंगे, रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो किसको जाके कहेंगे कि 2000 रुपये लगा दिया और रिजल्ट नहीं आया? ऑलवेज मैं अभी भी राइट नाउ मेरे जो मेंटोर्स हैं उनमें डिफरेंट लोग हैं। मिस अलेक्जेंड्रा इज माय मेंटोर फ्रॉम कनाडा। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बहुत अच्छी डिजाइनर है। मैं हमेशा उनके साथ मीटिंग्स करता हूँ, मीटअप्स करता हूँ, सीखता हूँ उनसे, उनकी डेली रूटीन के बारे में जान के, और उनको फॉलो अप में रखता हूँ। उनके सोशल मीडिया को डेली खुद ओपन करता हूँ कि उन्होंने क्या पोस्ट किया है, क्योंकि वो आइडियाज जो वो पोस्ट कर रही होती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो मैं और कहीं देख ही नहीं पाता। मैं उधर से लर्न कर रहा होता हूँ और वो चीजें जो मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, मुझे वहां से जो आइडियाज ग्रैब होते हैं वो कहीं और से नहीं होते हैं। तो रीजन इज जस्ट दैट कि एक मेंटर होना चाहिए। मेरे पास अगर मेंटर्स ना होते तो मैं यहाँ तक इतनी कम एज में, लाइक आई एम जस्ट 24 ऑलमोस्ट, नॉट मोर देन 24। तो मेरे पास अगर मेंटर्स ना होते तो मैं प्रोफेशनली काम ना कर पाता। I have clients on global level in UK, USA and Australia as well, जिनको मैं सर्विसेज दे रहा हूँ एंड दे रियली केयर अबाउट। तो मुझे कह रहे होते हैं कि आप सो जाएं, अब हम कल मीटिंग करेंगे क्योंकि इट्स लेट नाउ और हमें आपकी फिक्र है। इट्स लाइक दैट। क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस को मेरी वजह से बहुत फायदा हो रहा है। मैं जब उनके बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ, उनका बिजनेस ज्यादा हो रहा है। वो उन्होंने और भी बहुत सारे लोग साथ एक्सपीरियंस किया होगा, उनको इतना फायदा नहीं हुआ होगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, सिंपल इज दैट। अगर आपके पास मेंटोर नहीं है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप किसके साथ जाके, किससे गाइडलाइन लें, अपने आप को अपडेट कैसे रखें, अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ जाके शेयर करेंगे। तो आपके टीचर्स जिनसे आपने सीखा होता है और वो लोग जो आपके फील्ड में सीनियर होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में सीनियर्स होते हैं, वो बेसिकली आपके मेंटोर्स होते हैं और उनसे आपको सीखना चाहिए और उनके साथ अटैच रहना चाहिए। यू शुड हैव अ मेंटोर ऑलवेज। All right, got it. So I think कि हमें अब wind up करनी चाहिए meeting, and I would like to say thank you on behalf of UMT and HPA. The training went so well and the logic of suggestions seems easy to follow, and I'm sure it will yield great results. I hope everyone has enjoyed the session and gained new information a lot. And thank you so much, sir. The talk was very informative. Thank you for presenting us this much informative presentation in such a ब्यूटीफुल वे। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा, और आई होप कि सबने बहुत कुछ सीखा। और आप जो वॉलंटियरली हम सबके लिए टाइम निकाला आपने और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, इट इज़ वंडरफुल एंड वी आर सो मच ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच अगेन। वी विल इनवाइट यू इन अनदर सेशन। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने एटलीस्ट कुछ सीखने के लिए टाइम निकाला, क्योंकि सीखने का टाइम हमारे पास होता नहीं है। हम बेसिकली इस चीज को फोकस ही नहीं करते स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए। एंड आई एम ऑलवेज पैशनेट। या सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी जो सब ग्रुप्स में हैं उनको वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट्स भी ग्रुप में ही मिल जाएंगे। सो आई थिंक वी शुड एंड अप। श्योर। ओके, या श्योर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिए। If you will be having any query, you will be asking me. Okay? Jazakallah.